Hello, everyone, and welcome to the very first episode of Behind the Mic, brought to you by Roshni. My name is Shayan Qureshi, and I'm the president of Roshni. I will be one of your hosts today as we dive into global politics, Pakistan's current affairs, and economics. Our goal here on the Behind the Mic is to dig deep, ask thought provoking questions, and bring fresh perspectives to the issues that matter the world the most. Today, I'm joined by my brilliant co hosts, Shamal Khan and Hamal Sheikh, who each bring unique insights to our discussions. Shamal, you may please introduce yourself. Hello and Assalamualaikum everyone. My name is Amal and I'm the Vice President at Roshni. I'm honored to be here with my amazing team at the first episode of Behind the Mic. Hello everyone, this is Shamal and I'm one of the analysts at Roshni. I'm excited to be here and can't wait to start. And we are incredibly honored to welcome our guest, Mr. Raid Masood. Raid Masood, an international politics graduate from the University of Manchester, has worked on USAID's anti-terrorism program and DFID's civic education initiative. He occasionally writes on foreign policy and has taught at the University of London and currently teaches politics at the Lahore Grammar Schools. Researching environmental and global health policy, Raid has joined us today to share their perspective and engage to what promises to be a very fascinating discussion. So, without any further ado, welcome to the show. Thank you so much. Thank you for having me. So, right before starting any questions, how are you doing today, and what's your entire vibe about this episode? I'm doing pretty okay, actually. Excited about your podcast. First of all, congratulations to everybody for launching this, very hopefully productive initiative. The entire vibe is that I just want to have a fruitful discussion with all of you, and just see what's happening in the world currently. Yeah. Okay, so let me just then start with the first question. Yeah. So, right, how do you think that the newly elected US President Donald Trump would impact the ongoing Russia-Ukraine war? And do you believe that Trump would bring the entire war towards a ceasefire, or he would arm Ukraine to do a counteroffensive against Russia? Yeah, I think that's a great place to start. It's a very topical issue right now, the American election and, Trump's return. It's a very triumphant return for him. The only thing, really predictable about Donald Trump is that he is unpredictable. That's I think the only thing that we can say about him with certainty. But, most analysts would say that we need to take him on face value. So Trump, as far as the Ukraine war is concerned, has very famously said, it's been repeated over and over again, that he said, I'm going to end the war in 24 hours. Now, that's quite a feat if he's able to do that. But Putin has also said, Trump's claims they deserve some attention at least. So at the very least, we at least need to really look into what that claim is and how, if at all, he's going to do that. Now, in the past, he's asked Ukraine to concede something to Moscow. Donald Trump, he loves to cut a deal. He sees himself as this big settler of big issues. We've seen that sort of version of him in the past as well. So he's done so with the Abraham Accords, this sort of big defrost in the Middle East, where these sort of traditional rivals of Israel, he was able to bring them on board and, get the recognition of Israel as a state. He moved the American embassy to Jerusalem. That was a big move. He obviously, famously met Kim Jong-un, went to travel to North Korea. So he's a bit of a mover and a shaker in terms of, international politics. Will there be a ceasefire? I think so, yes. If, so let's just see what's happening over here. Donald Trump, if only for vanity reasons, would want to see some sort of a settlement when it comes to Russia, Ukraine. He would, and this is not just for himself. Actually, Russia and Ukraine would want to be part of some sort of settlement as well. Both these countries are facing tremendous internal sort of domestic pressures with regards to the war. Also, we don't talk about this enough, I think, but European Union, the European Union's involvement in the war, they want to have some sort of a settlement over there as well. I think the central issue here is
what will that look like? Donald Trump, he doesn't come off as a fan of Zelensky. So if and we also know that he has some sort of a personal relationship with Putin. Now that relationship has its ebbs and flows, but there is some relationship over there. What we really need to analyze is what will that ceasefire look like? We have several options over there. So number one would be if we go for a freeze, jo abhi status quo hai, we just retain that. That would leave some parts of Ukraine and eastern Ukraine with Putin. That would that be acceptable to Ukraine? Probably not. We also have to look at Crimea. Do we have Crimea on the table at all? Has Europe really become comfortable with Crimea being under Russian control, because it has been with Russia since 2014? So we really need to sort of look at that. As far as Russians are concerned, any ceasefire deal would require a guarantee on the American part that Ukraine will not be part of NATO. That is an existential issue for Russia, that Ukraine should not be part of NATO. So any kind of ceasefire, if we have, would require Ukraine's complete sort of, not being part of NATO as far as Ukraine is concerned. Now, to what extent is that acceptable to Zelensky? We'll have to see. But will there be a ceasefire? I think so, yes. So on this response, I have just two questions in my mind. That first of all, don't you think that with this overall stance of Trump that he would bring a ceasefire, and you said that he is not, a kind of a fan of the Ukrainian premier, and he has a bit of a connection with the Russian president Putin, which we he was in tenure. Don't you think that it would create a sort of an atmosphere of Trump being pro-Putin and being anti-Zelensky, and would not that create an issue for the Trump government to stay in US? Because let's agree that every American doesn't want United States to be in good relationships with Russia. Yeah, so that is true, but I think Wait. Also, I'd like to add something that if negotiations fail or lead to Russian gains, what contingency plans would be in place to support Ukraine without reigniting the conflict? So you're right about Americans not wanting, a positive relationship with Russia. But I think the bigger concern actually that Americans have is that they don't want to be dragged into this Ukrainian conflict. And that's not just the US. That's also the sentiment in Germany. That's also the sentiment in France. It's also the sentiment in the UK. We've just seen people voting, in big numbers for Donald Trump. Donald Trump has always stood for isolationism. He's always stood for, sort of removing America from global wars, not being this sort of global policeman for, conflicts abroad. So I think Americans are more concerned with getting America out of Ukraine, not sending aid, not sending, because Donald Trump, he famously said about Zelensky, his demands never end. Now, right now, they're supporting Ukraine with aid, they're supporting Ukraine with weaponry. But if they really want to get into the Ukrainian camp, Ukraine would love if the Americans actually send in troops. And that is just something that is completely, not acceptable to not only the Americans, but the British people feel the same about British troops as well. And, when in 22, when the war started, there were big protests in Germany, in Berlin, happening against German involvement in Ukraine. So I think Americans more so than, we sometimes you overstate this sort of America versus, Russia, Ukraine binary that we have. Americans are far more concerned with, having money in their own pockets. And for them, that only happens if America is not fighting everybody else's war. So Donald Trump stands for that as far as they're concerned. And that's just something that they would want. They would want to, cut a deal over there. Okay, so yes, that could be seen in his campaign too, where he preached the the policy of isolation for the United States, which
the US has not practiced for quite a long time, but now Trump would be kind of an revolution towards this United States policy. So thank you so much for those insights. So the next question that I would like to ask is that recently certain news has prevailed that I'm sure you have also gone through, that around 3,000 North Korean soldiers are being deployed into the Russian military to fight against Ukraine. So how do you take that? In my opinion, there are two parts of those spectrum. So the first part is that it is somewhat a regular ally move that North Korea is trying to do, and the second part is that Russia is trying to show to the globe that it has certain numbers of partners behind its own back. And even though the West would apply sanctions on Russia, Russia is not alone and it has partners. So how do you take that? Yeah, so I mean, if you want updates, news has actually just come out, I believe today. So it's not 3,000. The number is anywhere between 10 to 11,000 now. And Ukraine has finally, so it's not a rumor anymore. Ukraine has confirmed that they've had their first interaction with North Korean troops just today. So I mean, the news came out today, so it could have been yesterday. The number is anywhere between 10 to 11,000 soldiers. What we don't know is if all 10 or 11,000 have come like together, or will it be like a slow and gradual sort of reinforcement, which would in total be 10 or 11,000. Ukraine, some military officials from Ukraine have claimed that there are some 3-star generals in there as well. So those reports are not confirmed. But just looking at what's happening, so there's a region in Russia called the Kursk Oblast, and Ukraine had really had made gains over there. So they went into there was this like very successful Ukrainian incursion into Russian territory. Russia, if it wants to fight Ukrainian forces over there, they would have to call back some of the Russian troops that are fighting inside Ukraine. Now, Putin has not gone for all-out mobilization. So his entire army, for example, is not focused on Ukraine. Obviously, he needs to manage that war internally, like domestically as well. So he's gone all the way to North Korea to get some reinforcements from them, rather than, let's say, going to Moscow or St. Petersburg. Now, North Korea itself relies on Russia for like vital trade and military support. North Korea, in turn, can in a very limited way actually help Russia. And that's basically, in terms of providing actual soldiers. They have their own sanctions to deal with. They don't have a lot of equipment of their own. So all they can do is basically provide this sort of manpower. Now, in terms of, conventional foreign policy wisdom, this is not a regular move at all. This is not sort of like a regular ally move that you can call your allies and they can fight alongside you. We're not used to this type of, mobilization. The only sort of comparison that we can make is if it's like a formal multilateral engagement, let's say at the level of NATO. That is something that we have seen. But this almost, like subversive tactic that Russia has used to get North Korean soldiers to fight alongside them is not something that we see every day. So it's not in line with, let's say, conventional foreign policy wisdom. You can look at it in two ways. So for us, in terms of predictability, it just leads to further chaos, and particularly as far as the West is concerned. It leads to more uncertainty. You don't know, what sort of subversive, irregular tactic, Putin might have up his sleeve now. This is not something that we usually expect. So that's number one. Number two, some analysts in the West have seen this as a desperate move on the part of Russia, that it shows a sign of desperation, that it's really losing, some areas of the war at least, to the extent that they've had to call troops from North Korea, no less. So no matter how you look at it, it's not a regular move. Now, one other comparison I would also like to make. We've had obviously very prolonged Afghan and Iraq wars, wars where the West was engaged. Russia can turn around and say that the West also employed private security firms to fight alongside them in Iraq. Now, those were not foreign countries, but in terms of having like irregular partners, sure. Us living in Pakistan, we're very familiar with the term Blackwater.
I remember growing up in those, war on terror years, we had this private security firm called Blackwater. And, their operatives were rumored, or, some people would say they were actually there just all over Pakistan. We have more concrete proof of their involvement in Iraq and, some offshoot of that in Syria. So the West has had irregular partners as well, but they were not foreign countries as such, unless it was a NATO level sort of multilateral engagement. So as far as this is concerned, yeah, it's and something new. We don't see this in foreign policy every day, but that's just a new dynamic that we see in the Russia-Ukraine war. In your opinion, do you think that North Korea did a smart move by dragging itself into such a war that it had no supposed relation to? I mean, it's very early days. We've just seen like one sort of engagement that the Ukrainians have had with the North Korean troops. So it's really early days to predict that. But in all likelihood, it's probably not. It's not really a smart move. North Korea has its own limitations. North Korea has its own wars to fight. Its own sort of conflicts with South Korea, with the US, obviously. It is plagued with sanctions. It is plagued with, just economic issues. There's also a big chance of Russian troops not getting along with North Korea. Remember, these are people who, other than some sort of like a historic ideological alignment, even that is a bit shaky. We've not really seen cooperation at this level. Are there levels of training the same? Do Russians really trust North Korean troops? Do they trust them to be in leadership positions? Like I said, some Ukrainian officials have said that 3-star generals are in those 10, 11,000 soldiers as well. Do Russian troops really trust them with sort of leadership positions and, like battleground formations? Probably not. I do remember a few weeks ago, there was some leaked tape of Russian soldiers, speaking amongst themselves and talking about North Korean soldiers and saying, well, what do we do about these guys? And to what extent do we sort of include them, in our plans? So it really remains to be seen, but from the onset, at least right now, it doesn't appear to be too smart moves. Also, one last point about this. Inevitably, North Korean soldiers will die in the battlefield as well. North Korean government will have to justify their deaths to their own people as well. I know there's not much accountability in North Korea, but if their soldiers lose lives, and by the way, Zelensky has confirmed today that there were losses. Now, he hasn't mentioned on which side were their losses. So was he talking about Ukrainian losses or North Korean losses? We don't know. He hasn't confirmed, but he did say there were losses. So if there were losses on the North Korean side, the North Korean government will have to justify those to their own people as well. Why are their people dying in foreign battles that they're fighting for other countries? So that really remains to be seen. Yeah, you're correct that there are some things that need time to be, judged properly. While you were talking, मेरे दिमाग में एक और सवाल आया कि if you're saying that 3-star generals be उन 10,000 या 11,000 में included थे, so who would be commanding the entire thing? मतलब those generals will be Russians or those generals would be North Koreans who would be commanding those tens or thousands of people. So with that, I think let's go for a break, a 5-minute break, and we can just continue it back. Thank you so much. Okay. So let's just again begin with the questions and answers. So Raid, the last question that I wanted to ask you was kind of a broader question and kind of a very interesting and intriguing type of question. So you might have heard a widespread kind of declaration that there is an axis of upheaval, also known as the axis of evil, that is coming into this global politics spectrum, and there are certain countries who are part of those axis. So how do you take that, and what is your approach in that? Yeah, so for the benefit of your younger listeners, let me just also point out, axis of upheaval, a big bada recent term है जो कि इसी साल उन्होंने introduce कराया.
लेकिन जो ओरिजिनल एक्सेस ऑफ ईवल है, दैट्स एन ओल्डर टर्म. This goes back to 2002. So shortly after 9/11, जो पहला State of the Union address हुआ US में, and George Bush obviously was the president. He is the first person to use that term axis of evil to describe three countries which he said were very hostile to the US. So post 9/11 environment में जो particular hostility show कर रही थी US को, so Iran, Iraq and North Korea. These were the three countries back then which George Bush ने कहा कि ये axis of evil है. Now, of course, for history students, हमें ये भी पता है हिस्ट्री में ये एक्सेस वाले टर्म्स इन्होंने पहले भी यूज किए हैं. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो आपके ये एलाइज थे, जो उनके अपोजिंग कंट्रीज थी, वो एक्सेस पावर्स थी. तो ये एक्सेस वाली टर्मिनोलॉजी द वेस्ट यूजेस क्वाइट ऑफन. नाउ करंट ये जो एक्सेस ऑफ अपहीवल है, इसमें दे हैव चाइना, दे हैव रशिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया. कलेक्टिवली इनको क्रिंक भी कहते हैं. सो उनके लिए उन्होंने अभी एक्सेस ऑफ अपहीवल एक टर्म इंट्रोड्यूस करा दिया. आई थिंक इट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय अ थिंक टैंक कॉल्ड द सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी. या सो उन्होंने अभी एक्सेस ऑफ अपहीवल का टर्म यूज किया है. इसके कोई उस तरह से एज सच रिपरकशंस नहीं है, बिकॉज वेस्ट ये वाली टर्मिनोलॉजी यूज करता है क्वाइट ऑफन. सो इसको हम थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि वो किस बेसिस पे इन कंट्रीज को फॉर एग्जांपल क्लब टुगेदर कर रहा है. इनमें एक अगर आप कॉमन चीज देखो, सो देयर इज सम एंटी वेस्टर्न सेंटिमेंट. ऑब्वियसली दैट्स द सॉर्ट ऑफ हिस्टोरिक एक आप कह लो इनकी एसोसिएशन है, एक आइडियोलॉजिकल एक उनका बॉन्ड है कि वो एक एंटी वेस्टर्न सॉर्ट ऑफ वेस्टर्न लेड जो ग्लोबल ऑर्डर है उसको ही ऑपोजिशन शो करते हैं. चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने रशियन जो उनकी पार्टनरशिप है उसने कहा इट्स अ नो लिमिट्स पार्टनरशिप. So we can really see these two major powers, in these Axis countries coming together उस तरह से. एक चीज उसमें हम लोग ये एक और सिमिलैरिटी देख सकते हैं, they have similar governments. So particularly अगर आप वेस्टर्न लेंस से देख रहे हो, so you can say they have autocratic governments. वेस्ट जिसको कहता है, ये autocracies हैं सारी. At other levels as well, we do see some emerging cooperation in आपस में. So for example, at the economic front, we can see that Russia is now the largest supplier for crude oil for China, and not Saudi Arabia. जो historically Saudi Arabia होता था एक जमाने में, वो रशिया अब बन गया. हम लोग मिलिट्री के लेवल पे भी देख सकते हैं. फॉर द यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट, ईरान ने 4,000 to 5,000 ड्रोन्स प्रोवाइड किए हैं रशिया को, जो कि रशिया बड़ी इफेक्टिवली यूज कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है यूक्रेन में. चाइना ने अभी तक सो फार कोई डायरेक्ट मिलिट्री इक्विपमेंट एज सच नहीं दिया, बट चाइना ने बड़ी एक क्लेवर चीज एक और ये की है कि उन्होंने डुअल यूज इक्विपमेंट उन्होंने वो प्रोवाइड किया. So for example, they are providing Russia with plane parts. They are providing Russia with microchips. They are providing Russia with jamming equipment. वो उनको radars भी दे रहे हैं, उनको sensors भी दे रहे हैं. Now these are all things जो कि आप civilian purpose के लिए भी use कर सकते हो, और आप covertly आप military purposes के लिए भी use कर सकते हो. So we do see कि military front पे एक वो वाली cooperation इनके आपस में वो भी चल रही है. North Korea, of course, we know, other than providing troops, इनकी हम अभी बात कर रहे थे, ballistic missiles, ammunition, वो भी उन्होंने provide किया. And then maybe we can also, look at some diplomatic efforts कि ये एक दूसरे के लिए sort of, stand up कैसे करते हैं या उनको include कैसे करते हैं. बड़े हमारे दो important platforms हैं. One is BRICS, और BRICS में उनके recent जो summit हुआ है वहाँ पे ईरान को भी उन्होंने include कर लिया. So that is on the insistence of Russia and China. So we see ये जो एक्सेस ऑफ अपहीवल कंट्रीज हैं उसमें से उन्होंने ईरान को उसमें इंक्लूड कर लिया. अभी ऑफ कोर्स हैव द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अभी इस्लामाबाद में रिसेंटली उनका समिट हुआ, तो उसमें भी ईरान भी है, उसमें रशिया भी है, उसमें चाइना भी है. सो एट दैट लेवल वी डू सी कि ये कंट्रीज अपनी कोऑपरेट काफी कर रही हैं, कि कोऑपरेशन काफी इंक्रीज हो रही है. बट प्लीज बेयर इन माइंड, अगर आपने इसको एनालाइज करना है, वी ऑल्सो नीड टू सी कि इनमें डिफरेंसेस भी हैं. वी ग्लॉस ओवर द डिफरेंसेस, क्योंकि हम अक्सर एक बड़े वेस्टर्न किस्म के लेंस से सारी चीज को देख रहे होते हैं, एंड वी जस्ट सी कॉमन एनिमीज एवरीवेयर. इनमें आपस में डिफरेंसेस भी हैं. सो फॉर एग्जांपल, ईरान एंड रशिया दोनों compete करते हैं फॉर द गैस मार्केट इन एशिया. दोनों एशिया के डिफरेंट पार्ट्स को गैस भी प्रोवाइड करते हैं. ईरान ऑब्वियसली थोड़ा सा इनकम्बर्ड है अपनी सैंक्शंस की वजह से, लेकिन ऑयल एंड गैस की दोनों की सिमिलर मार्केट्स हैं, सो दे विल बी कंपीटिंग ओवर देयर.
सीरिया में जब रशिया का बहुत एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, सीरिया में ईरान का इन्फ्लुएंस भी है, एंड रशिया वुड वांट टू चेक ईरान का इन्फ्लुएंस ओवर देयर एज वेल. सो इनमें डिफरेंट नोड्स ऑफ पावर भी हैं. लाइक वी ऑफन लुक एट देम एज सॉर्ट ऑफ वन ब्लॉक, एंड वेस्ट पर्टिकुलरली ये जो एक्सेस इस तरह के बनाना शुरू कर देता है कि कोई एक्सेस ऑफ ईवल है या एक्सेस ऑफ अपहीवल है. ये मोनोलिथ सॉर्ट ऑफ ब्लॉक्स नहीं है इस तरह के, इनमें आपस में भी बहुत डिफरेंसेस हैं. So we really have to keep that in mind. But as far as putting out these labels is concerned, इसका कोई as such इतना कोई you can say कि इस point onwards कोई इतना कोई major change नहीं है. वेस्ट का वही, या particularly US का वही इनकी तरफ रवैया है जो कि आगे भी रहेगा. बस अब उन्होंने एक तरह से उनको क्लब टुगेदर कर दिया और कहा कि अच्छा ये सारे जो हैं वो सेम पेज पे हैं. बट दैट्स जस्ट अबाउट इट. अच्छा, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने एक वर्ड चॉइस ऐसी रखी है जैसे एक्सेस वर्ड इस्तेमाल की है. सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने पहले कहा कि 2002 के अंदर भी एक एक्सेस ऑफ ईवल एट सॉर्ट बना था, और एज फार एज आई रिमेम्बर जो वर्ल्ड वॉर के अंदर एंटी वेस्ट ब्लॉक था ना, ऑफ जी जी. जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर एंड जापान, उसका भी नाम एक्सेस पावर्स ही था. सो दे आर काइंड ऑफ ट्राइंग टू इम्प्लाई कि Yeah. वही नॉन वेस्ट एंटी वेस्टर्न ब्लॉक आ रहा है जो कि दुनिया में तबाही करेगा. तो आई थिंक बिल्कुल वर्ड बिल्कुल चॉइस बिल्कुल बहुत ऐसा ही है. मजेदार है. हाँ बिल्कुल ऐसा ही है. सो दिस रियली गेन्ड इन्फॉर्मी ये जॉर्ज बुश के उसके बाद, एड्रेस के बाद. एक्सेस ऑफ ईवल, वो जो ईरान, इराक, नॉर्थ कोरिया के पास बड़ी डिस्टिंक्शन है कि वो दोनों एक्सेस में है. सो वो एक्सेस ऑफ ईवल में भी था और अब वो एक्सेस ऑफ अप ईवल में भी है. मगर एज आई सेड, वर्ल्ड वॉर 2 आपकी इटली है, नाजी जर्मनी है, इंपीरियल जापान है, उन्होंने कहा जी एक्सेस कंट्रीज हैं. सो वेस्ट ये वाली आइडियोलॉजी यूज करता है. एक्चुअली द पेपर जो कि सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी ने निकाला है, जिसके अंदर उन्होंने ये टर्म यूज किया है, जिसने ये टर्म कॉइन की है, जो एनालिस्ट जिन्होंने ये कॉइन किया टर्म, शी सेड कि हम एक्सेस ऑफ अपहीवल इसको कह रहे हैं बिकॉज वी डोंट वांट द टर्म टू बी वेरी हैवी. लास्ट टाइम उनको लगा जैसे एक्सेस ऑफ ईवल एक बड़ा हैवी टर्म है, कि ईवल का आप जब एक वर्ड यूज करो, ऑल्सो क्योंकि इसमें ना थोड़ी सी रिलीजियस इमेजरी भी आना शुरू हो जाती है. ईवल को फिर आप उस तरह से देखना शुरू कर देते हो. तो उन्होंने उनके लिए ये जरा न्यूट्रल टर्म है, एक्सेस ऑफ अपहीवल. दे सेड कि ये थोड़ा सा एक न्यूट्रल टर्म है. नाउ वेस्ट की अपनी प्रायोरिटीज हैं, वेदर दे थिंक ऑफ दिस एज ए न्यूट्रल टर्म, वो ठीक है, उनको ऐसे लग रहा है. लेकिन ये टर्मिनोलॉजी आपका पर्टिकुलरली जो हेजेमोनिक ऑर्डर होता है, वो जो उसके खिलाफ जब लोग खड़े होते हैं तो वो इस तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं. So that's what the West is doing again. अच्छा, एंड इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी कि जो भी टर्म वेस्ट कॉइन करता है दैट इज ऑब्लाइज्ड ऑन द एंटायर वर्ल्ड कि उसने वो टर्म इस्तेमाल करनी है, rather their perspective on the issue. So that is quite interesting. So now I would just like to give the mic to Shamal. You may continue with the questions. Thank you so much, sir. Thank you. At last, finally, I've got the chance to be the mic bearer. So, Mr. Rad, I have quite a lot of questions for you. And the first one is that what is the Pakistani government planning to allow the 3-month detention of terror suspects? And will this improve or worsen the political climate? Yeah, that's a very important question. एक तो ये, let me just point out कि this is not the first time कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस तरह का कोई लॉ लाना चाह रही है, particularly with regards to increase in terrorism, जो कि हमने देखा है पिछले हफ्तों महीनों में, particularly on our western border. एक ऑनस्लॉट आना शुरू हुआ है अटैक्स का. इनफैक्ट जस्ट दिस मॉर्निंग आज की जो खबर थी क्वेटा रेलवे स्टेशन से, सो वो चीज़ हम लोग बिल्कुल देख रहे हैं. ये एक सिमिलर इस तरह का क्लॉज ये लोग लाए थे पहले आफ्टर द एपीएस अटैक 2014 का, एंड उसमें भी वेरी सिमिलर पावर्स, इनफैक्ट एक्चुअली आई वुड से ऑलमोस्ट आइडेंटिकल पावर्स यही उन्होंने पहले भी दी थी टू द आर्म फोर्सेस, टू सिविल आर्म फोर्सेस, टू पुलिस फोर्सेस. और इसी तरह उन्होंने उनको एम्पावर किया था कि वो JITs फॉर्म करें. वो आप 3 महीने तक सस्पेक्ट्स को डिटेन कर सकते हो, आप उन पे इन्वेस्टिगेशन करें, उनका पूरा बैकग्राउंड चेक करें. एंड ऑल्सो लेट मी जस्ट पॉइंट आउट कि पाकिस्तान इज नॉट दी ओनली कंट्री जो इस तरह की कुछ चीज़ करता है. आफ्टर द 2005 लंदन बॉम्बिंग्स इन द UK, उन्होंने भी सिमिलरली इसी तरह का एक अमेंडमेंट लाए
टू देयर ह्यूमन राइट्स एक्ट, द एक्ट जो कि लोगों के राइट्स को इंश्योर करता है यूके में। और उन्होंने टू मच शॉर्टर पीरियड, उन्होंने कुछ हफ्तों के लिए सिर्फ किया था, लेकिन बहरहाल वो भी लाए। उन्होंने कहा हमारा जो सिक्योरिटी अपरेटस है वो अप टू पार नहीं है, हमें उसको अपडेट करने की जरूरत है, तो तब तक के लिए हमें इतनी पावर ही दी जाए। Now, as in the case of the UK and also the 2014 पाकिस्तानी केस, दोनों दफा this came with a sunset clause. Sunset clause होता है कि जब आपका कोई लॉ एक्सपायर कर जाए। So sunset clause is an expiry date जो कि आप एक लॉ के ऊपर लगा देते हो। हमारे जो यहाँ पे ये लॉ आया 2014 में, उन्होंने कहा जी 2 साल का सनसेट क्लॉज इस पे है, तो 2016 में वो हमारे लॉज लैप्स कर गए। सो अब 2016 से ऑनवर्ड्स ये जो स्पेशल पावर्स वो देना चाह रहे हैं वो हमारे यहाँ पे नहीं लागू होती। 2016 onwards, you know, the government felt like the situation was much better. Operations आपको पता है ट्राइबल एरियाज में हुए, they thought like सिक्योरिटी सिचुएशन काफी बेहतर हो गई, तो हमें अब एक्स्ट्रॉर्डिनरी उनको पावर्स अब देने की जरूरत नहीं है। Now we see particularly with the you know return of the Afghan Taliban, और वहां से फिर टीटीपी अब अफगानिस्तान में बेस्ड है, we feel like क्रॉस बॉर्डर अटैक्स बहुत हो रहे हैं वहां से। सो अब एक सिचुएशन काफी अलार्मिंग केपी में भी, बलूचिस्तान में भी हो रही है। सो सिमिलरली वो इसी तरह की पावर्स अब वापस लाना चाह रहे हैं। सो एक तो आई जस्ट लाइक टू पॉइंट आउट कि एक लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न तो है, वो बिल्कुल है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे और स्टेट इंस्टॉलेशंस पे अटैक्स हो रहे हैं वहां पे। बट लिविंग इन पाकिस्तान, यू नो, ट्रूथ इज ऑफन स्ट्रेंजर देन फिक्शन। आपको पता है कि हमें कुछ चीजें जरा बिटवीन द लाइंस हमें बहुत ज्यादा चीजें देखनी पड़ती हैं और पढ़नी पड़ती हैं। जो किसी का भी ह्यूमन राइट्स पर अगर नजर है पाकिस्तान में, उनका जो मेन कंसर्न है वो ये है, हाउ डू यू डिफाइन अ टेररिस्ट। इसके लिए हमारा जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है। नाउ अगर आप वो बिल देखो, इट इज जस्ट बीन टेबल्ड इन द पार्लियामेंट, तो अभी पास नहीं हुआ। उसमें उन्होंने काफी सारी कुछ डेफिनेशन बीच में लिखी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भत्ता ले रहा है या कोई टारगेट किलिंग कर रहा है तो चलो ठीक है, उसकी तो हमें समझ आती है। बट कुछ और बीच में लैंग्वेज भी है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने उसमें लिखा हुआ है रिलेटिंग टू द सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, एक काफी ब्रॉड एक नेट है कि सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद उन्होंने कहा एनी पर्सन जिसके खिलाफ कोई रीजनेबल कंप्लेंट आई हो या कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हमने रिसीव की हो उस बंदे के खिलाफ, या कोई रीजनेबल सस्पिशन उसके खिलाफ हो, तो हम लोग उसको भी रोक सकते हैं। नाउ हमारी स्टेट में जो ज्यादा इस वक्त बड़ा कंसर्न है विद रिगार्ड्स टू यू नो दिस लॉ, वो ये है कि क्या हम टेररिस्ट का लेबल यूज करके पॉलिटिकल पार्टीज को भी टारगेट करेंगे? क्या हम लोग टेररिस्ट का लेबल यूज करके सोशल मीडिया पे जो लोग होते हैं उनको भी टारगेट करेंगे? क्योंकि हमने ये चीज देखी है इन द पास्ट हुआ है हमारे मुल्क में ऐसे कि वो पार्टी एक्टिविस्ट को भी टेररिस्ट कह देते हैं, वो सोशल मीडिया पे किसी ने पोस्ट लगाई उसको भी टेररिस्ट कह देंगे, वो मिलिट्री को इन सम कैपेसिटी क्रिटिसाइज कर रहा होगा वो उसको भी टेररिस्ट कह देंगे, वो कहेंगे ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के खिलाफ यहाँ पे काम हो रहा है। सो मच सो कि हमने कुछ स्टूडेंट प्रोटेस्ट देखे हैं फॉर स्टूडेंट्स राइट्स, वो उन पे टेररिज्म का चार्ज लग जाता है। सो आवर कंसर्न मेनली शुड बी कि ये टर्म आप किस किस पे अप्लाई करोगे। यू नो दैट इज रियली व्हाट वी नीड टू सी। देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज एंड स्टेट इंस्टॉलेशंस को एक बहुत बड़ा थ्रेट है, और उनके लिए अगर ये कुछ तरह के मेजर्स आते हैं तो मे बी यू नो हमें ऑब्वियसली उसमें ये जरूर देखना है कि चाहे जिस पे भी सस्पिशन है उसको फेयर ट्रायल मिले, उस पर इन्वेस्टिगेशन फेयर हो, उसको लॉयर का एक्सेस हो, ये चीजें हमने बिल्कुल इंश्योर करनी है। लेकिन उसके साथ फिर हमारा एक वाइडर कंसर्न हमेशा यही बन जाता है कि ये किस पे अप्लाई होगा। नाउ केस इन पॉइंट हम लोग पीटीएम को भी देख सकते हैं, जो आपका पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है। अब वो एक इसलिए बड़ा एक पिक्यूलियर केस है क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें ओवरलैप कर रही हैं। वहां पे आपका एक एसोसिएशन जो कि केपी के साथ या केपी की सिक्योरिटी के साथ वो भी है, एंड एट द सेम टाइम आपकी पॉलिटिक्स भी चल रही है बीच में। नाउ पीटीएम एक ऐसा लिटमस टेस्ट बन गया है सब पार्टीज के लिए। आपको पता है पीटीआई एक टाइम पे बड़ा, इमरान खान साहब खुद बड़े प्रो पीटीएम होते थे, वो कहते थे यार इनके बड़े लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं। फिर वो ऐसा ऐसा करके इन्होंने कहना शुरू किया कि जी यहाँ पे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व हैं बीच में। सो यू नो दीज केसेस कैन बिकम वेरी वेग, और उस हिसाब से फिर लोगों के राइट्स कौन से इंश्योर हो ना हो, आप किसको टेररिस्ट कहेंगे किसको नहीं कहेंगे, ये वाली चीज थोड़ा सा फिर हमें एक मर्की वाटर्स की तरफ ले जाती है। लास्ट पॉइंट आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड
कि ये वाला भी जो अमेंडमेंट है, दिस इज ऑल्सो फॉर 2 years, इस पे भी 2 साल की एक्सपायरी लगी हुई है. दिस हैज ऑल्सो कम विद द सनसेट क्लॉज. सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर एवर. 2 साल बाद इसका रिव्यू होगा. एट दैट पॉइंट अगर उनको लगा कि सिचुएशन अब बेहतर है तो शायद 2016 की तरह फिर उसको ना रिन्यू करें. सो दैट इज क्वाइट लाइकली. बट इसमें पिटफॉल्स हैं दैट वी शुड बी वेरी वेरी कंसर्न अबाउट. Acha, so Mr. Rayad, I'm from Quetta and I know the PTM and I know these kind of protests. So I want to ask you about this, that recently PTM had a Jarga and they decided that they'll have their border and everything. How do you take that? I mean, with the PTM again, एक आपको you really need to understand कि उसमें से एक तो ये कि it really depends on what you believe and what you don't believe. हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती भी है वो किसके थ्रू मिलती है, किससे मिलती है, किस कॉन्टेक्स्ट में मिलती है. पीटीएम जिस तरह शुरू जब हुई थी, आई थिंक इट वाज एक काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन थी. उनके कंसर्न से अबाउट ओवर मिलिटराइजेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज, उनके कंसर्न से कि वहाँ पे क्योंकि इतनी प्रेजेंस है तो वहाँ पे लोगों के साथ ज्यादती भी होती है. उनके कंसर्न ये थे कि उनकी डेली लाइफ में इंट्रूजन इतनी ज्यादा हो गई है कि उनकी डिस्ट्रप्शन बहुत ज्यादा है. और उसके साथ साथ ये कि फिर उन पे तरह तरह के स्टीरियोटाइप्स लगते हैं, लोगों में बायस बहुत ज्यादा है उनके खिलाफ. एक एक फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ये आपकी इस तरह की एक मूवमेंट थी विच रियली बर्स्ट एज अ रिजल्ट ऑफ एक ओवरबेयरिंग आप कह रहे हैं मिलिट्री प्रेजेंस इन द ट्राइबल एरियाज. ओवर टाइम उसमें पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो गई है. नाउ मिलिट्री जो है, जो आपको वो बताते हैं कि इसमें फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज पर्टिकुलरली स्टेशन्ड इन अफगानिस्तान, वो इन्फ्लुएंस करते हैं ट्राइबल एरियाज को बहुत ज्यादा. और उसी में आपका पीटीएम, क्योंकि वहां पे एक तरह से अब एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बन गई है कि उसमें वो कहते हैं कि उसमें इन्फिल्ट्रेटर्स एक तरह से वो भी वहां से आ गए. नाउ वैसे तो अगर आप देखो तो जब से पीटीएम बनी है तो सम रूमर्स अबाउट के जी ये किसी और फॉरेन एजेंसी ने शुरू की है, वो तो तब से ही है. आई थिंक ओवर टाइम वो कोई कुछ जो बिलीफ है वो कुछ सेक्टर्स में वो चीज अब वो उस चीज को मानना भी शुरू हो गए हैं. बट आई वुड हैव टू से यू हैव टू गो बैक टू बेसिक्स. क्या उनके कंसर्न्स लेजिटिमेट हैं? क्या उनके वहां पे जो जिंदगी है उसमें आसानी है? क्या उन लोगों के पास सारे वो राइट्स हैं जो कि आपके बड़े अर्बन सेंटर्स में लोग एंजॉय करते हैं? क्या उन लोगों के पास अनफेटर्ड इंटरनेट का एक्सेस है? क्या उनके पास एक फ्री मूवमेंट है अपने ही इलाके में, जहाँ पे जगह जगह पे नाका ना लगाओ या जगह जगह पे उनकी चेकिंग ना हो रही हो? यू नो हम लोग असल में अनफॉर्चुनेटली पास से सीखते भी नहीं है. अगर आपकी कोई ग्रीवेंस है और आप उसको एड्रेस नहीं करोगे, ओवर टाइम वो ग्रीवेंस आहिस्ता आहिस्ता कुछ और बन जाएगी. नाउ आई एम नॉट इंसिनुएटिंग कि पीटीएम एक्चुअली इज डूइंग द बिडिंग फॉर एनीबडी एल्स, बिकॉज पर्सनली आई डोंट थिंक दे आर. लेकिन ओवर टाइम अगर आप एक चीज को नहीं एड्रेस करोगे, अगर आप एक वूंड को फेस्टर होने दोगे, तो उसमें और लोग बीच में शामिल होंगे. और इसमें ये हर मूवमेंट में इसी तरह होता है. ये हमारी अपनी हिस्ट्री बड़ी, आपको पता है, बड़ी क्या कहना चाहिए, एक खैर वैसे तो बड़ी ब्लडी हिस्ट्री है हमारी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हमारी अपनी हिस्ट्री एक के बाद एक क्राइसिस है. वी जस्ट स्टम्बल फ्रॉम वन क्राइसिस इनटू अनदर सिंपली बिकॉज वी फेल टू एड्रेस द कोर इशू. सो पीटीएम पे रादर देन लुकिंग एट कि अच्छा नहीं इसमें ये हमें लग रहा है इन्वॉल्वमेंट है या अब उन्होंने ये कह दिया है, you have to go back to what the basic issue was. And the base जो आपका सबसे जो बेसिक इशू है वो यही है कि उनके वहां पे उनकी जिंदगी में स्टेट इंट्रूजन जो है उसने उनकी जिंदगी में मुश्किलात कैसे पैदा की. एंड इफ यू डोंट एड्रेस दैट, अल्टीमेटली दिस हैज द पोटेंशियल टू बिकम समथिंग दैट वी विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल. Yeah, agreed. State needs to address these issues. Moving on to my second question.
How can Pakistan balance its relationship with major powers like China and the US given the ongoing tensions between these nations? पाकिस्तान देखो अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ तो हमारी बड़ी लिमिटेड चॉइस है सुनो हम लोग जिस तरह की मुश्किलात हमारे पे हैं आई डोंट थिंक कि वी आर इन अ पोजीशन राइट नाउ टू बैलेंस एनीथिंग क्वाइट फ्रैंकली राइट नाउ वी नीड ऑल द हेल्प दैट वी कैन गेट एंड जहाँ मर्जी से हमें वो हेल्प मिल रही है फिलहाल तो हमारे हालात ऐसे ही हैं बट जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन लॉन्ग टर्म में हमें क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म में देखो हमने दो मेन चीजें करनी है एक हमने इकोनॉमिकली अपने आप को डाइवर्सिफाई करना है वी कैन नॉट कीप पुटिंग ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट जो कि हम अपनी पूरी हिस्ट्री करते आए हैं लिटरली सिंस पार्टीशन हम लोग यही चीज करते आए हैं कि हम लोग एक किसी के साथ जुड़ जाते हैं और फिर हम कंप्लीटली उस पर रिलाई करते हैं बिकॉज हमें इंटरनेशनल सोसाइटी में से सेवियर्स चाहिए दैट हैज बीन वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम्स फॉर पाकिस्तान कि हम लोग सेवियर्स ढूंढते हैं इस वक्त अगर हमें लग रहा है कि चाइना हमारा सेवियर है हमें 20 साल पहले लग रहा था कि अमेरिका हमारा सेवियर होगा सो द प्रॉब्लम रियली इज कि हमें अपने आप को इकोनॉमिकली डाइवर्सिफाई करना है अगर हमें इन दोनों को बैलेंस करना है अगर हमें एक ऐसी पोजीशन में आना है वेयर नन ऑफ देम आर यूजिंग अस एज वेल एज हम लोग दोनों के साथ अगर अगर तो हमने चलना है हमें अगर दोनों से अगर फायदा चाहिए तो हमें अपने आप को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा हमें अपने आप को इकोनॉमिकली डाइवर्सिफाई करना है वी हैव टू टेक एडवांटेज फुल एडवांटेज ऑफ आवर एसेट्स और हमें उसके साथ वी हैव टू मेक आवरसेल्व्स यूजफुल फॉर बोथ ऑफ देम आप देखो इंडिया है या हमारे इन द पास और ऐसे कंट्रीज रहे हैं बट इंडिया इज वेरी गुड एग्जांपल कि इंडिया अपने आप को इन सब पावर्स के बीच में इन सम सेंस बैलेंस कर लेता है बट वो बैलेंस इसीलिए करता है बिकॉज इंडिया हैज मेड इटसेल्फ वेरी यूजफुल फॉर दीज कंट्रीज तो अगर हम लोग अपने आप को इकोनॉमिकली डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे अभी अगर आप देखो you just analyze the language that our government uses with regards to China. वो एक इतनी overbearing और एक इतना sort of going overboard वाली लैंग्वेज है कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम लोग मजीद और कैसे उनसे करीब हो जाएं हमारी पूरी की पूरी लैंग्वेज यही है कि आप जो हमारे लिए कर रहे हैं वो तो कोई कर ही नहीं सकता और सिमिलरली आप आज से 20-25 ईयर्स पीछे जाओ हम लोग यूएस के साथ एक इतना एक अनकंफर्टेबली क्लोज एक हमने रिलेशनशिप बना लिया था इवन दो इट वाज वेरी डुप्लिसिटस पाकिस्तान हैज ऑलवेज प्लेड दैट डबल गेम लेकिन वो एक इस तरह का रिलेशनशिप था कि यूएस ने आपको मोस्ट एलाइड एलाय का उन्होंने आपको स्टेटस दिया और एक और स्टेटस हमें मिला हुआ है उनसे विच इज मेजर नॉन नेटो एलाय मेजर नॉन नेटो एलाय आपको लेने के लिए कांग्रेस से उनको बाकायदा बिल पास करना पड़ता है जो कि वो पास हुआ हुआ है और हम उनके मेजर नॉन नेटो एलाय डिक्लेयर हुए हैं वी आर कॉन्स्टेंटली इन सर्च ऑफ सेवियर्स हमें इस आदत से बाहर निकलना है हमें अपने आप को सबके लिए यूजफुल बनाना है अगर तो हमें उस गेम का पार्ट नहीं बनना कि वो कल को हमें यूज करें जो कि हमें सब कंट्रीज करती आई हैं सो दैट्स नंबर वन वी नीड इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन दूसरी एक चीज अनफॉर्चुनेटली विच आई सी ऑल टू ऑफन क्योंकि मेरा अपना पर्सनल काम भी क्योंकि इसी फील्ड में है हमारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स आर एक्सट्रीमली वीक बारिंग वन और टू वेरी गुड डिप्लोमेट्स या आप कह दो कि कुछ असाइनमेंट्स में हम लोग अच्छा कर जाते हैं या कुछ जगहों पे समटाइम्स हम लोग कोई अच्छा बेनिफिट वहां से रीप कर लेते हैं अनफॉर्चुनेटली आर डिप्लोमेटिक सर्विस अब जिस तरह की है या हमारी डिप्लोमेसी आप कह रहे हैं लेट्स पुट इट दैट वे जिस तरह की है आई डोंट वांट टू ब्लेम डिप्लोमेट्स इंडिविजुअली पर से आई एम श्योर दे ऑल वेरी हार्ड वर्किंग पीपल लेकिन हमारी डिप्लोमेसी जो है वो बहुत लैक करती है हम लोग अपना केस पुट फॉरवर्ड करते ही नहीं है और ना कर पाते हैं हमें वो इफेक्टिवली अपना केस उनको पुट फॉरवर्ड करना है हमें अपने सिटीजन्स को ना ओनली प्रोटेक्ट करना है वहां पे आप देखो हमारी बहुत बड़ी एक्सपायर्ड कम्युनिटी है जो कि मिडिल ईस्ट में भी है जो कि यूरोप में है जो कि यूएस में है हम लोग उनको आज तक चैनलाइज ही नहीं कर पाए अदर देन दैट वी रिलाई ऑन देम फॉर रेमिटेंसेस लेकिन उसके अलावा हम लोग उनको कभी चैनल ही नहीं कर पाए कि हमने उनको एक एसेट अपने लिए कैसे बनाना है एक इसका बहुत अच्छा कंपैरिजन आपके जो इंडियन अमेरिकन हैं वो एक बड़ी इन्फ्लुएंशियल लॉबी यूएस में वो बन चुकी हुई है तो हम लोग मे बी इवन थोड़े से कम लेवल पे लेकिन बिल्कुल एक उस तरह की चीज बन सकते थे यूके में बन सकते थे यूएस में बन सकते थे हम लोग अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बने कभी भी सो हमें अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को बहुत स्ट्रेंथन करना है कि अगर हम चाइना के साथ एक सर्टेन लेवल ऑफ एंगेजमेंट में हैं कि यूएस के जो फेयर्स हैं उनको भी हम लोग साथ साथ एड्रेस करें
हमें ये ना, उनको ना ये कम से कम लगे कि अच्छा यार ये अगर कंप्लीटली उस कैंप में है तो दैट समहाउ हम लोग कोई एंटी यूएस उसका हिस्सा बन रहे हैं। एंड लाइकवाइज हमारी रिलायंस यूएस पे हमेशा रहेगी। हम लोग उन पे फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए बहुत रिलाई करते हैं, हम लोग इकोनॉमिकली उन पे बहुत रिलाई करते हैं। तो हमारी वो रिलायंस ओवरनाइट चली नहीं जाएगी। तो हमारा जो उनके साथ रिलेशनशिप है, चाइना को भी उसमें फिर इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए कि अगर हम लोग कोई हार्डवेयर यूएस से खरीदते हैं, या हमारे एक बड़ा हमारा वो स्क्वाड्रन पूरा F-16 का हमारे पास है, हमें उसके लिए यूएस के साथ एंगेजमेंट चाहिए, हमें इन सब चीजों में उनको भी साथ लेके चलना है। सो अगर ये दोनों अगर तो हमने इन दोनों के बीच में फंसना नहीं है, वी हैव टू बैलेंस बोथ ऑफ देम आउट, we have to do this. We have to diversify economically, and we also have to strengthen our diplomatic efforts because those are severely lacking. Yeah, agreed. Mr. Raid, we have to go on a short break right now. So my last question for you will be that how will developing nuclear powers affect the balance of power in the Middle East, and how the US and UN will respond to this development? Yeah, that's a very important question. हमारा जो ये अगर हम इसका एनालिसिस शुरू करें, ऑब्वियसली वीड हैव टू स्टार्ट विद ईरान बिकॉज दैट्स द ओनली सॉर्ट ऑफ पावर राइट नाउ। इजराइल के पास तो पहले ही है न्यूक्लियर वेपन्स। ईरान एक ऐसी वाहिद वो पावर है जो कि हम कह सकते हैं नेक्स्ट कुड बी इन लाइन। ऑब्वियसली दे डिनाई इट, द वेस्ट सेज कि नहीं वो बना रहे हैं वेपन्स। लेट्स अज्यूम कि अगर वो उनके पास वेपन्स आ जाते हैं तो पोटेंशियली उसका क्या एक इम्पैक्ट हो सकता है मिडिल ईस्ट पे। एक थ्रेट है हमारे पास, एंड वो कितना सब्सटैंशिएटेड है वी रियली हैव टू सी, बट वन रिस्पॉन्स कुड बी दैट इट कुड ट्रिगर एन आर्म्स रेस। आर्म्स रेस इस तरह ट्रिगर होगी बिकॉज सऊदी अरेबिया particularly has very openly and publicly said in the past and on multiple occasions कि ईरान के पास अगर वेपन्स आ गए तो हम भी बनाएंगे। हम लोग एक डिटरेंट क्रिएट करने के लिए हम भी न्यूक्लियर वेपन्स परसू करेंगे। ऑब्वियसली वी नो ईरान सऊदी अरेबिया की हिस्टोरिकल राइवलरी है उस रीजन में। सो सऊदी अरेबिया ने तो बड़ी ओपनली ये बात कई दफा कही है। टू अ लेसर एक्सटेंट इजिप्ट एंड टर्की हैव हिंटेड एट द सेम कि अगर ईरान डेवलप कर लेता है वेपन्स सो वी विल हैव टू go down that path as well. अब वो किस हद तक होता है या नहीं होता we'll really have to see. लेकिन एक ये थ्रेट है कि बाकी जो एडवर्सरीज हैं ईरान के वो भी कुछ ना कुछ फिर ये डेवलप करना शुरू करें। Now that triggers a chain reaction as well. वो चेन रिएक्शन ये है कि यूएस प्राइमरीली अगर हम वहां से शुरू करें, दे हैव एन इंटरेस्ट इन द रीजन, दे हैव एलाइज इन द रीजन। यूएस जो है वो कोशिश करेगा कि ये लोग न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ ना जाएं, सऊदी अरेबिया मेनली, एंड देन वी कैन आल्सो लुक एट टर्की एंड इजिप्ट, कि ये न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो डेवलप ना करें। एक तरीका ये हो सकता है, जो एक ऑप्शन यूएस के पास है, वो ये है दैट इट वुड बोल्स्टर मिलिट्री पैक्ट्स विद दीज कंट्रीज। क्योंकि व्हाई डू दीज कंट्रीज वांट टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स? क्योंकि वो कह रहे हैं भी हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए करना है। तो सिक्योरिटी का एक ऑल्टरनेटिव ये हो सकता है कि फिर यूएस उनके साथ मिलिट्री पैक्ट्स को फर्दर बोल्स्टर करें, particularly again सऊदी अरेबिया, यूएई, वी कैन आल्सो लुक एट जॉर्डन, क्योंकि जॉर्डन जो है वो इजराइल और ईरान के रास्ते में आता है बीच में। अभी भी आप देखो जो ईरान की तरफ से पहले ड्रोन अटैक हुआ इजराइल पे, फिर अभी जो मिसाइल वाले भी उन्होंने अटैक्स किए हैं, all of those have gone over Jordanian territory. So जॉर्डन भी उसको टाइम शूट डाउन भी करता है। सो जॉर्डन जो है वो इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं, जॉर्डन को भी एक सिक्योरिटी का जो इशू है वो या कंसर्न है वो उनका भी आएगा। तो यूएस एक ये चीज जरूर कर सकता है इन वन वे, दे कैन रिएक्ट कि वो अपने मिलिट्री पैक्ट्स को फर्दर फिर स्ट्रेंथन करें इन कंट्रीज के साथ एज एन अश्योरेंस। That, by the way, could also mean that there could be even more American bases in the region. Already उनके bases बहुत ज़्यादा हैं मिडल ईस्ट में, पूरे मिडल ईस्ट में स्प्रिंकल्ड हैं, बट दैट कुड मीन कि वो फर्दर फिर अपने वहाँ पे कोई एडिशनल हो सकता है, फ्लीट भी ले आए, हो सकता है कि अपने फिर फर्दर बेसिस वहाँ पे अपनी बनाना शुरू करें। बट यूएस की तो बात हम तो कर रहे हैं, वी ऑल्सो हैव टू एक्नॉलेज रशिया एंड चाइना बिकॉज दोज आर टू मेजर प्लेयर्स इन द रीजन। आई नो आपके क्वेश्चन में रशिया एंड चाइना नहीं था, बट लेट मी जस्ट मेक अ क्विक पॉइंट अबाउट दैट। इन दोनों के भी इंटरेस्ट में है कि इस रीजन में स्टेबिलिटी रहे।
कि इस रीजन में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी ना आए। चाइना के बड़े क्रूशल लिंक्स हैं सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ, वेदर विद रिगार्ड्स टू आपकी जो ऑयल की पूरी सप्लाई चेन है, वेदर विद रिगार्ड्स टू जो वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, स्टील वो लोग बहुत खरीद रहे हैं चाइना से। सो चाइना का भी एक इंटरेस्ट है रीजन में कि वो स्टेबिलिटी वहाँ पे इंश्योर करे। रशिया का भी सिमिलर इन जगहों पे भी है, एज वेल एज रशिया का एक इंटरेस्ट, एक बड़ा डीप रूटेड इंटरेस्ट जो है वो सीरिया में भी है। और सीरिया में अब आपको पता है कि वहां पे भी ईरान का बहुत इन्फ्लुएंस है। जो सीरिया में भी अरब स्प्रिंग ऑनवर्ड जो वहां पे पूरी सिविल वॉर चलती रही है, वहां पे भी ईरान का बड़ा एक इन्फ्लुएंस वहां पे भी है। सो रशिया एंड चाइना वुड बोथ बी वेरी कॉशियस, दे वुड ट्रेड वेरी कॉशियसली कि ये सिचुएशन जो है वो आगे किस तरफ जा रही है। रशिया एंड चाइना कुड सपोर्ट, आप कह लो, मेजर्स फॉर नॉन प्रोलिफरेशन, कि ये चीज ज्यादा मुल्कों में ना फैले, बट दे वुड ट्रेड वेरी कॉशियसली। वो शायद बहुत ओवरबेयरिंग ना हो, जैसे यूएस हो सकता है इंस्टेंटली बहुत ज्यादा एक ओवर ड्राइव में चला जाए। पर्टिकुलरली ऑब्वियसली एक अंडरस्टूड बात है, यूएस सैंक्शंस भी लाएगा अपनी तरफ से, तो वो भी चीज हो सकती है। रशिया एंड चाइना का भी वहां पे एक रोल है, बट इट्स मोर, आप कह लो, ज्यादा कॉशन के साथ होगा वो। With regards to the UN के अगेन आपकी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, एनपीटी, वो उसको नेचुरली इन्फोर्स करना चाहेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल, अगर तो रशिया और चाइना नहीं वहाँ पे कोऑपरेट करते यूएस के साथ या यूके के साथ, तो सिक्योरिटी काउंसिल में तो डेडलॉक होगा। सिक्योरिटी काउंसिल इस पे शायद आगे फिर ना बढ़ सके। बट इट इज लाइकली, क्योंकि रशिया एंड चाइना के भी शायद इंटरेस्ट में यही बात है कि इतने ज्यादा मुल्कों के पास वेपन्स ना हो, it is likely that they could cooperate एक सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के लिए, एंड देन वेरी स्लोली वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते उनको उस सिचुएशन में से निकालें। सो ये एक पूरा चेन रिएक्शन है जो कि मिडिल ईस्ट में शुरू हो जाएगा, अगर तो ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं। लास्ट में सॉरी एक और चीज मैं सिर्फ ये भी बताऊं कि I also have to say, sometimes these predictions can really fall flat. इंडिया पाकिस्तान के केस में भी at that time एक ये आई थी prediction, और इस तरह के एनालिस्ट ने काफी बातें की थी कि दोनों के पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएं, that could just spell disaster for the world, given कि एक हमारा बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट है जो कि कश्मीर है, और हमारे केस में तो वो कंटिगुअस एक फ्लैश पॉइंट है, वो हमारा एक एक्चुअल बॉर्डर भी उनके साथ लगता है। ईरान और लेट्स से इजराइल, इनका तो बॉर्डर नहीं है उस तरह से, लेकिन वो चीज उस तरह से नहीं हुई। इफ एनीथिंग, सिंस बोथ ऑफ अस हैव गॉन न्यूक्लियर, हमारी ऑल आउट वॉर अभी तक नहीं हुई, एंड आई थिंक दैट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ कंट्रीज। एंड एक बड़े कंटेन्ड किस्म के कॉन्फ्लिक्ट हमारे रहे उसके बाद से। सो इट कुड मीन कि ये जो बाकी मुल्क हैं, अगर कोई डिटरेंट इस तरह का डेवलप कर लेते हैं, दैट थिंग्स बैलेंस देमसेल्व्स आउट, बट फॉर दैट टू हैपन, जो आपके वर्ल्ड पावर्स हैं, दे वुड हैव टू अलाउ दीज कंट्रीज टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स इन द फर्स्ट प्लेस, कि वो अलाउ करें सऊदी अरेबिया को कि अच्छा यार अब आप भी ये बना सकते हो, या टर्की अगर बनाना चाहता है कहें अच्छा जी अब आप भी बना सकते हैं। इफ दीज पावर्स अलाउ देम, मे बी वी कैन रीच सम सॉर्ट ऑफ अ बैलेंस इन द मिडिल ईस्ट, बट इफ नॉट, तो फिर ये आपका चेन रिएक्शन है जो कि इसके साथ शुरू होगा। Yeah, quite interesting. Yes. So I'll hand it over to Hamal. That's it from me. Thanks. Thank you. Starting off with my first question. As you know, Iran is inclined towards getting a naval base on the coastline of Sudan, even though it's not in the mainstream at the moment. Will this be a big step? And if yes, what will be the West's reaction towards this? Yeah. So yeah, it's not really discussed in the mainstream, you're right. Let me just give you एक बहुत ही क्विक सी थोड़ी सी हिस्ट्री इसके बारे में। सो इनका रिलेशनशिप सस्पेंडेड रहा है फ्रॉम 2016 टिल लास्ट ईयर 2023। they've just resumed their relationship, Iran and Sudan. सो एक 2016 में एक सऊदी एम्बेसी इन तेहरान, उस पर एक अटैक हुआ, एंड आफ्टर दैट उन्होंने कहा कि सुडानीज भी इन्वॉल्व हैं, तो उसके बाद से इनका रिलेशनशिप इसेंशियली सस्पेंडेड था। लास्ट ईयर इन्होंने अपना रिलेशनशिप रिज्यूम किया। एक तो ये कि एवर सिंस द रिजम्पशन ऑफ दिस रिलेशनशिप, इंस्टेंटली ईरान का इन्फ्लुएंस जो है वो वहां पे बढ़ना शुरू हो गया। सो दैट्स वेरी वेरी अपेरेंट। दे वांट टू हैव एक्सेस टू द पोर्ट, और उस पोर्ट का नाम इट्स वेरी क्वाइट सिंपली जस्ट कॉल्ड पोर्ट सुडान, उसका नाम ही पोर्ट सुडान है।
तो वो वहां पे एक अपनी कोई बेस बनाना चाह रहे हैं. They've already started making inroads, and they started making inroads the same month जब उन्होंने अपना relationship resume किया. So that is dictated by कि जो सुडानीज गवर्नमेंट है वो एक सिविल वॉर वहां पे चल रही है, और ईरान ने सुडानीज गवर्नमेंट को प्रोवाइड किए हैं विद ड्रोन्स, विद एम्यूनिशन. वो उनको मिलिट्री ग्रेड वेपन्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है सिविल वॉर को लड़ने के लिए. सो ईरान का एक तो मिलिट्री इन्फ्लुएंस ऑलरेडी सूडान में थ्रू दैट रूट वो आना शुरू हो गया. ओरिजिनली ईरान ने डिमांड की थी एक हेलीकॉप्टर लैंड करने की बेस, जो कि सो फार द सुडानीज गवर्नमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड. बट कितनी देर तक सूडान इसको रेजिस्ट कर पाएगा? आई मीन माय प्रेडिक्शन इज नॉट वेरी लॉन्ग. द सुडानीज गवर्नमेंट इज वेरी वीक बिकॉज ऑफ द सिविल वॉर. उनकी अपनी बड़ी लिमिटेशंस हैं, एंड सो इट वोंट बी लॉन्ग बिफोर ईरान वहां पे कोई ना कोई अपनी परमानेंट बेस बनाना शुरू कर दे. नाउ उसकी रिपरकशंस क्या हैं? लेट्स से अगर तो वहां पे कोई बेस बन जाती है, एंड लेट मी आल्सो पॉइंट आउट, आई रिमेंबर रीडिंग अ न्यूज़ रिपोर्ट के Iranian authorities have already rented 17 apartments in Port Sudan. So वो 17 apartments तो एक तरह से उन्होंने अपनी टेम्पररी सी बेस, अपनी प्रेजेंस आप कह लो, वो तो ऑलरेडी उन्होंने वहां पे एस्टैब्लिश कर ली है. Okay, now in the long run what will happen is, or what can happen is, Port Sudan is a very important point along the Red Sea coastline. Red Sea coastline जो कि आपकी African coastline है with the Red Sea. आपका जो if you look at the map of the Red Sea, तो southern part पे एक आपका choke point है, which is one of the major choke points, like naval choke points that we have, which is called the it's called the Bab el Mandeb. बाब अल मंदेब जो है वो आपका एक चोक पॉइंट है जो कि यमन की कोस्ट और जिबूती, दिस वेरी स्मॉल कंट्री, अफ्रीकन कंट्री कॉल्ड जिबूती, उनके बीच में एक चोक पॉइंट आपका वो बनता है. बाब अल मंदेब, आई मीन, यू नो, आयरॉनिकली मींस द गेट ऑफ टेयर्स और द गेट ऑफ ग्रीवेंस, आई बिलीव वो भी शायद उसकी ट्रांसलेशन वो भी है. बट रिगार्डलेस, वहां से आपकी मेजर जो ऑयल सप्लाईज हैं थ्रू जो आपकी मिडल ईस्ट से, पर्शियन गल्फ से होते हुए जो यूरोप की तरफ जा रही हैं, वो उसके थ्रू जाती हैं. वो आगे कनेक्टेड है आपके सुएज कनाल से. सो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका वो पॉइंट बनता है कि जहां से आपका वो ये ऑयल की जो वो सप्लाई है वो जा रही है. ईरान, इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ के ईरान पर्टिकुलरली पोर्ट सुडान में क्यों बनाना चाह रहा है, वहां पे क्यों आना चाह रहा है? अगर आप इरानियन एसेट्स को देखो अलोंग और लाइक अराउंड द मिडल ईस्ट, तो एक वो आपको पता है हुथीज को फंड करते हैं इन येमेन. सो दैट वुड बी सॉर्ट ऑफ लाइक सदर्न जो आपके साइड है मिडल ईस्ट की. दे ऑब्वियसली बैक हिजबुल्लाह, सो दैट वुड बी लेबनान, सो दैट्स लाइक नॉर्दर्न साइड मिडल ईस्ट की. एंड ऑफ कोर्स लाइक वी नो अबाउट जो हमास के जो उनके साथ लिंक्स हैं. जो एक पॉइंट आपका एक तरह से रह जाता है वो आपकी वेस्टर्न साइड है, जो कि मिडल ईस्ट को एक तरह से पूरा इंसर्कल करती है. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ईरान, उनके लिए बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव है कि आप इस पूरे एरिया को इंसर्कल कर सकते हो. यू हैव हिजबुल्लाह एंड ऑब्वियसली ईरान इटसेल्फ है, बट लाइक यू हैव हिजबुल्लाह इन द नॉर्थ, यू हैव द हुथीज इन द साउथ, एंड वेस्टर्न साइड जो है वहां पे फिर आपके पास पोर्ट सुडान आ जाता है. एंड दैट गिव्स देम एन ओवरसाइज्ड इन्फ्लुएंस in the Red Sea, in controlling the Bab el Mandeb, in controlling oil supplies to Europe and beyond, and that just gives them a very prominent role वहाँ पे उसको influence करने के लिए उस region को. अभी आप क्योंकि देखो Iranian assets, if you want to call them that, they have been in the recent conflict have been very assertive. हिजबुल्लाह की तरफ से भी शुरू में अब तो उन पे खुद पे अटैक हो रहा है इसराइल से, लेकिन शुरू में उनकी तरफ से भी माइनर किस्म के ड्रोन अटैक्स वगैरह वो होते रहे. हुथीज ने भी एक दो दफा कोशिश की, वो सऊदी अरेबिया ने शूट डाउन कर दिया, बट बहरहाल दे डिड ट्राई. सो these are assets that are assertive, these are not docile in, assets in that sense. ईरान की अपनी तरफ से ऑफ कोर्स वी सी जो ड्रोन अटैक हुआ, फिर मिसाइल अटैक हुआ इसराइल पे. सो एक कंप्लीट एनसर्कलमेंट है इफ दे गेट अ फुट होल्ड इन पोर्ट सुडान, एंड that's a very strategic move. And will this be a big step, you ask me?
yes, it has the potential to be a very big step. Now, ईरान की obviously अपने limitations हैं. ईरान पे खुद पे भी sanctions लगे हुए हैं. उनके economic हालात इतने अच्छे नहीं हैं. To what extent will they be able to capitalize? Already वो थोड़े से overstretched हैं in not only maintaining their army, but supporting Hezbollah, supporting Hamas, supporting the Houthis. अगर वो एक और कोई इस तरह का रोल पोर्ट सूडान में करना शुरू कर दें तो वहां पे they'll be stretched a little further. Iran would also have to really see कि it doesn't get sucked into the Sudanese civil war. जो उनकी अपनी civil war चल रही है उसमें ईरान, other than just supplying the Sudanese government with weaponry, उसके अलावा वो वहां पे completely suck up ना हो जाएं उस conflict में. So it is a case of, potentially it could mean that Iran is being a little overstretched, but from a strategic point of view, it can be a very big step, yes. But as you've already mentioned, Iran, if it basically does this, would have most of the control over the Red Sea. And with the US and the West allow this, I mean, for them, this would be backstep towards their influence over the Middle East. So what do you have to say about this? Yeah, no, I mean, that's a major point of contention between Iran and, American folk, but not only the Americans, the Europeans as well. And not only the Europeans, potentially, like regional powers, like let's say Turkey. Turkey का भी एक बड़ा role है. It's not only in this conflict, but in managing, the Mediterranean Sea. उनका जो हिस्सा सुएज कनाल से करीब है, Turkey एक role वहां पे भी play करता है. We also know there's a permanent presence of an American fleet in the Mediterranean. So with all of their presence, and let me also point out, चाइना का भी वहां पे एक रोल है क्योंकि चाइना अपने इंटरेस्ट को वहां पे सिक्योर करता है. चाइना के इंटरेस्ट इन अफ्रीका particularly are drastically and dramatically increasing, and so China needs to protect its own interests as well. Now, it might seem like Iranian and Chinese interests are converging, and to an extent that could be true as well. So they could sort of piggyback on each other when it comes to allowing Iran a foothold in Sudan. बिल्कुल वो भी हो सकता है. And but जो आपकी American fleet की वहाँ permanent presence है, of course they will not take this very lightly. Let me also say, अगर ईरान की वहाँ पे एक base बन जाती है permanent, that also makes Iran the target of these rebel forces which are fighting the Sudanese government, and they could potentially start targeting Iran as well. Right now, Iran is very far away. Iran दूर से उनको weapons भी provide कर रहा है. And that's fine, it's an adversary जिसके बारे में वो कुछ कर नहीं सकते. But if they start to have a permanent foothold in Port Sudan, that will make Iran a target of these attacks as well. So Iran की तरफ से, yes, it's a very strategic move, but not without its own perils. Whether it is coming into direct confrontation with Western fleets just present there, absolutely, वो चीज हो सकती है. It will heighten tension in the region. And they will not take it very lightly, but it's something that Iran is willing to undertake. So I think they'll go for it. Thank you for your valuable insights. I'll move on to the next question. Pakistan is located at the cross borders of several global powers. How do you think Pakistan's global political position affects its foreign policy decisions? Yeah, I mean, as a question, it's very important, but I think इसका बड़ा tragic answer if I'm being honest. Pakistan, unfortunately, has never had a coherent foreign policy to begin with. Your question is कि उसका हमारी जो strategic position है, हमें crossroads पे हैं, उसका हमारी foreign policy पे effect क्या है? Unfortunately, we don't have a coherent foreign policy to talk about. देखो, before we get into कि हमारी options क्या हैं या वो किस तरह का effect हो सकता है, let me just say कि हमारे foreign policy theaters हैं क्या? Number one is our own backyard, so that could be South Asia, particularly dominated by India and Afghanistan. ये हमारे दो sensitive neighbors हैं. We can look at China separately because एक हमारा उनके साथ एक independent relationship है. Beyond these, हमारे तीन main theaters हैं, which are the Middle East, एक बड़ी expat community वहाँ पे है, as well as relationship with Muslim countries, Europe and the US. ये हमारे main theaters हैं foreign policy के for Pakistan. Pakistan, unfortunately,
has never had a coherent policy जिसमें हम कैपिटलाइज कर सकें अपनी स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग में। हमारे लिए ये जो हमारी स्ट्रेटेजिक पोजिशन है हैज सो फार प्रूव टू बी मोर ऑफ अ बर्डन देन एनी एसेट जिसको हम लोग कैपिटलाइज करें। एंड खास तौर पे जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हम लोग उसमें इनेविटेबली सकअप हो जाते हैं। नाउ आई से दिस बट लेट मी ऑल्सो पॉइंट आउट, हम लोग बड़े विलिंग सॉर्ट ऑफ विक्टिम्स भी रहे हैं इसमें। वी आर कंप्लिसिट इन दिस। वी आर कंप्लिसिट इन दिस इसलिए बिकॉज लाइक आई वाज सेइंग दिस अर्लियर, हमें कॉन्स्टेंटली सेवियर्स चाहिए। हमें सेवियर्स चाहिए कि कोई आए और आके हमें वो इम्पोर्टेंस दे, और वो इम्पोर्टेंस देने में हमें एड देना शुरू करे, और समहाउ हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो ओवरनाइट डिसअपेयर कर जाएं, और हम लोग अपने उस पोजीशन पे ऐसे कैपिटलाइज करें कि सारे के सारे जो हमारे मसले हैं वो कोई और आके हल कर दे, हमें खुद भी ना करने पड़े। वो कहें यार इनकी इनकी पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमें इनके मसले जो है ना वो हल करने आगे। लेट मी ऑल्सो पॉइंट आउट दिस दिस एम्फेसिस ऑन कि हमारी पोजीशन बड़ी जियोपॉलिटिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है। This is also rooted essentially in the two Afghan wars that have happened, एक 80s वाली और एक अभी जो सबसे recent वाली है। इस अफगान वॉर की वजह से हमें एक ये आइडिया हमने डेवलप किया है, ऑब्वियसली लेड बाय सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, कि हमारी तो कोई एक एलिवेटेड पोजीशन है दुनिया में, कि हम लोग, हमारी को बहुत स्पेशल पोजीशन है कि उनको हमारी ज़रूरत पड़ती है और हमारे बगैर वो उसको रिजॉल्व कर ही नहीं सकते। And we have tried to squeeze as much as possible इसको यूज करके कि हम लोग जितने बेनिफिट्स उसमें से निकाल सकते हैं वो हम निकालें। Now what has happened as a result is कि we have ended up with a war economy। हमारी essentially एक security led war economy है, जो कि जब हमारे नेबरहुड में वॉर चल रही होती है तो हम बेनिफिट करते हैं, हमें अटेंशन भी मिलती है। अब जो मैं भी अभी आप पिछले एक क्वेश्चन को आंसर करते हुए कह रहा था कि मेजर नॉन नेटो एलाय का हमें जो वो मिला हुआ है स्टेटस, वो भी हमें अफगान वॉर के दौरान मिला। सो हम लोग कॉन्स्टेंटली उसी सर्च में हैं कि हमें कोई इस तरह की चीज हो जिसमें हमारे से बात करना, हमें इंक्लूड करना नॉन नेगोशिएबल हो जाए। नाउ दैट कैन नॉट बी योर फॉरेन पॉलिसी अप्रोच। ये आपकी अप्रोच नहीं हो सकती कि आप समहाउ एक डिल्यूजन के अंडर रह के अपनी उस पोजीशन को कैपिटलाइज करवाते रहो, क्योंकि हमारी जो पोजीशन है इस वक्त दुनिया में या साउथ एशिया में, उस पे अगर हम उसको कैपिटलाइज कभी भी हमने प्रॉपरली किया होता, रिएक्टिव तरीके से नहीं बट प्रोएक्टिव तरीके से, तो हमने अपनी इकोनॉमी को डेवलप किया होता, हमने अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करवाया होता। वी हैव डन नन ऑफ दैट। We have only reacted to the events unfolding in Afghanistan. We've only reacted to global powers descending upon South Asia, और हमने अपने आप को बस इस तरह से पोजीशन करने की कोशिश की है कि हमारे बगैर तो आप ये चीज कर नहीं सकते। that is a flawed approach completely। हमें therefore what I'm saying is कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस जो हैं वो एक्चुअली नहीं अफेक्ट होती हैं हमारी in that sense हमारी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उससे, क्योंकि हम उस पर कैपिटलाइज नहीं कर पाते। हाँ, हम रिएक्ट जरूर करते हैं उनको, हम रिएक्ट उन पे करते हैं, लेकिन रिएक्ट करना इज नॉट फॉरेन पॉलिसी। दैट इज नॉट अ प्रोएक्टिव असर्टिव फॉरेन पॉलिसी, and therefore we've never been able to develop our assets, we've never been able to assert ourselves, and the position that we have essentially is a burden। It's a burden जो कि हम लोग आज तक उससे consequences suffer कर रहे हैं, simply because we have been looking for saviors, and that's it। Thank you so much for your valuable insight. We'll be taking a break and continue later. Okay, so from your answer on our foreign policy, Mr. I have come to another question, and that is Pakistan is basically stuck between two parties, right? You could say the BRICS and the axis of upheaval. And I believe, it's my personal belief, that you can never stay neutral for too long. In your opinion, which party should Pakistan incline more towards? Sorry, can you repeat your question? I didn't get that part fully. I was trying to say, from our answer on our foreign policy question, I've come to the point that Pakistan is basically stuck between two powers, the BRICS and the axis of upheaval.
in your opinion, which side should Pakistan basically more get inclined towards more? Because you can never stay neutral for too long. You need to select one side. So which one would be in the benefit of Pakistan? BRICS and the axis of upheaval, you said, right? Yeah. So, I Yeah. mean, between BRICS and axis of upheaval, there is a lot of commonality, actually. I mean, we have, axis of upheaval includes countries like Russia, China. These are the two big powers in the BRICS countries as well. And so Pakistan, although Pakistan has formally applied to be a BRICS member, Pakistan is not a BRICS member yet. And so in some sense, you can say there is some overlap between the axis of upheaval and the BRICS countries. So just to answer your question, should Pakistan be, like, let's say, engaging at all with these countries? Yes, absolutely. It's in Pakistan's interest. It's in Pakistan's interest to keep Russia and China engaged. We have seen, when we were completely in the sort of Western American-led camp, that led to a lot of problems for Pakistan as well. And so पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट को देखना है, पाकिस्तान को सिर्फ एक बिग पावर स्ट्रगल में एक पॉन नहीं बनना. पाकिस्तान को ये देखना है खुद से कि हमारे चाइना आफ्टर ऑल इज आवर बिग नेबर. China is also the second largest population and also the second largest economy. So हमारा neighborhood already बड़ा tough है. It's one of the least, if not the least, actually integrated regions on earth. UN के जो designated regions हैं उनमें से जो South Asia region है, it's the least integrated on earth. And so if we are not, engaging with India and we have issues with Afghanistan and Iran is very hot and cold, we have to have a partner in China in that sense. And so similarly, Russia भी आप देखो, despite the Russia-Ukraine war, a country like India, उसने resist किया है इसको कि आप completely Western camp में चले जाएं और आप रशिया के साथ engage ही ना करें. So इंडिया ने बड़ी सक्सेसफुली अपने आप को उस पोजीशन में negotiate किया है, where it's also engaging with the US and also being one of the biggest trading partners of Russia. And so with Pakistan, we need to have a similar approach. We need to look at कि हमारे interest में क्या है. You said it's impossible to be neutral. I think we can remain neutral in that sense. देखो, न्यूट्रल होने का ये मतलब नहीं है कि आप कभी भी कोई साइड नहीं लोगे. न्यूट्रल होने का सिर्फ ये मतलब है यू कैनॉट बी इन अ कैंप, पर्टिकुलरली अ मिलिट्री कैंप और एन इकोनॉमिक कैंप, वेयर द अदर ऑप्शन इज जस्ट नो गो एरिया फॉर यू. डिप्लोमेसी का पॉइंट ही ये होता है कि आपके लिए ऑप्शंस डेवलप करें. एंड इन वन ऑफ द आंसर्स टू वन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चंस आई सेड हमें अपनी डिप्लोमेसी को स्ट्रेंथन करना है. सो डिप्लोमेसी को स्ट्रेंथन करने का ये भी मकसद है कि हमारे लिए ऑप्शंस डेवलप की जाए. एंड we therefore are not a country that can afford to completely be in one camp and then shut the door on the other side. So I do believe it's possible for us अगर हम अपने आप को internally develop करें. I mean, we have to have a stable economy for us to be able to assert ourselves in any way. हम अपने अगर आपको नहीं assert इस तरह से कर पाएंगे तो हम यही dependency में ही रहेंगे सिर्फ. And to what you were just asking about geopolitics as well, I think वो point भी इसके साथ linked है. We need to sort of step out of this approach कि हम लोग जैसे कोई exceptional, पाकिस्तानी exceptionalism जो हमने खुद ही से डेवलप कर ली है कि हम exceptional एक country हैं और somehow हम एक gift हैं from God in the sense के हम लोग जो मर्जी कर लें अब हमें कोई ना harm नहीं आएगा. We've already lost one half of our country. I think we need to be very cautious moving forward कि हमें किस तरह के alliances बनाने हैं, हमने किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी. And BRICS हो या axis of upheaval हो, these things come and go. Axis of evil था पहले, हमने वो देखा, वो भी आया. These things are not permanent. These things change over time. अमेरिका में एक्चुअली डॉक्ट्रिन है कि अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म का कि वो एक एक्सेप्शनल एक एग्जांपल है दुनिया में. सो आई थिंक हमने ना कुछ ज्यादा उससे अमेरिका के पास रह रहे कि उनसे कुछ इन्फ्लुएंस हम भी हुए हैं और हमने एक आइडिया ये डेवलप कर लिया है कि ये जो बड़ी पावर्स हैं ये हमें एंगेज किए बगैर तो ये कहीं भी नहीं जा सकते. We need to sort of step out of that mentality and we need to develop proper options for us. And part of that is to really see that we are not part of one camp. We are not just in BRICS.
और वी आर नॉट जस्ट, लेट्स से अगर शंघाई कोऑपरेशन का हम लोग पार्ट हैं, तो हम सारे एग्स अपने उस बास्केट में ना डालें। हमें अपने लिए ऑप्शंस डेवलप करनी है। बीइंग अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, हमारा उसके बगैर कुछ सर्वाइवल नहीं है। सो आई थिंक वी नीड टू ट्रेड वेरी केयरफुली, बट वी नीड टू हैव फ्रेंड्स इन मल्टीपल क्वार्टर्स। वैसे भी अगर आप देखो, द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी, द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स हैविंग sort of regional centers of power rather than just like say one or two that we used to have in the past. So हमें उन regional centers of power के साथ engage करना है, and whether that is something that we can call neutrality, or whether that is just us being diplomatically smart about just developing options, I think the latter, and I think we need to do that like very, very urgently. I think that a quote that you are, a phrase that you are particularly using is that Pakistan should not keep all of its eggs in one basket. I think that is the thing that should be most emphasized. क्योंकि as far as I have studied history, पाकिस्तान की एक जो foreign policy की एक negative point हम कह सकते हैं वो ये है कि when we are in the American bloc, हम लोग जो रशिया चाइना ब्लॉक है उसको बिल्कुल साइड पे कर देते हैं, एंड व्हेन वी आर इन द रशिया चाइना ब्लॉक तो हम फिर अमेरिकन ब्लॉक के साथ दुश्मनी डाल देते हैं। तो आई कैन टोटली एग्री विथ योर पॉइंट ऑफ व्यू के पाकिस्तान का जहाँ सेल्फ इंटरेस्ट जाता है ना, पाकिस्तान को थोड़ा सा उस तरफ जाना चाहिए, टेकिंग अ मोर सेल्फिश अप्रोच इन डिप्लोमेसी रादर देन टेकिंग योर ब्लॉक पॉलिटिक्स। और पता है, सेल्फिश अप्रोच के अलावा अगर आप अब पूरी अपनी पाक स्टडीज उठा के देखो, तो हम लोग, जो मैंने एक बात आई थिंक इनफ टाइम्स अब ऑलरेडी रिपीट की है, वो यही है कि हमने इंटरनली ना एक्चुअली ना तो कभी डेवलप किया अपने आप को, ना हम वो करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपनी ना इस पोजीशन को, जो कि हमें लगता है कि एक एक्सेप्शनल पोजीशन है दुनिया में, हम इसको लेवरेज करें और कोई आए और हमारे सारे मसले हमारे लिए हल कर दे और हमें खुद कुछ ना करना पड़े। अगर आप लिटरली उस दौर से अगर आप देखना शुरू करो, जो हम कहते हैं कि जी गोल्डन दौर था डेवलपमेंट का, अयूब खान का जमाना, अगर आप वहां से भी देखना शुरू करो, तो हम कभी सीटों के पीछे भाग रहे हैं, कभी हम सेंटों के पीछे भाग रहे हैं। हम क्यों भाग रहे हैं उनके पीछे? क्योंकि एड मिलेगी वहां से हमें। अच्छा, 70s का दौर आया तो भुट्टो साहब ने एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई कि पाकिस्तानियों को ग्रुप्स में, बड़े बड़े ग्रुप्स में मिडिल ईस्ट में भेजो, गल्फ कंट्रीज में भेजो एज एक्सपर्ट्स, वो वहां से रेमिटेंस भेजेंगे। वो एक चीज है जो आज तक हम उसको हम लोग बस उसी पे हम रिलाई कर रहे हैं कि आपके बड़े बड़े ग्रुप्स मिडिल ईस्ट में जाके बैठे और वो रेमिटेंस भेजें, ताकि हमें फिर खुद कुछ ना करना पड़े, बाहर से पैसा आता रहे। हम यही इसी चीज पे हम लोग रिलाई करते रहे। फिर हमारी जो दो बड़ी अफगान वॉर्स हैं उसमें भी हमने यही किया। पहली जो अफगान वॉर हुई, नॉट ओनली हमने उसमें ऑब्वियसली एड तो हमें मिलती रही, हमने साथ ही साथ उसमें बीच में बैठ के अपने न्यूक्लियर वेपन्स भी डेवलप कर लिए, जो कि हमारे लिए, चलो ठीक है अगर वो कहते हैं जरूरी भी था, लेकिन बहरहाल हमने उसी को लेवरेज करके हम साथ साथ वो भी करते रहे। सेकेंड अफगान वॉर जो अभी आपकी 2001 ऑनवर्ड शुरू हुई है, उसमें भी हमारा बड़ा एक आई वुड से डुअल रोल रहा है। तालिबान को एक तरफ हमने सस्टेन भी किया है, साथ ही साथ हम लोग अमेरिकन एलाई भी थे। तो ये जो हम लोग ग्लोबल इवेंट्स पे बस रिएक्ट करते हैं, एक होती है जिसको हम कहते हैं ना वेदर मेकर। हम लोग वेदर मेकर्स नहीं है, हम लोग सिर्फ रिएक्ट करते हैं टू ग्लोबल इवेंट्स। हम लोग आर नॉट ओनली वेदर मेकर्स फॉरेन पॉलिसी में, क्योंकि उसमें तो शायद हमारी इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन वैसे भी नहीं है कि हम लोग फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट करना शुरू करें। हम अपने मुल्क के लिए भी वेदर मेकर नहीं है। ये तो जब बारिश हो जाती है तो फिर हम छतरी ढूंढते हैं कि अब हमने इससे बचना कैसे है, और वो भी छतरी अक्सर हमारी अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से वो हवा के साथ उड़ जाती है और फिर हम लोग बस एक्सपोज्ड होते हैं। सो दैट इज जस्ट बिन आवर अप्रोच, एंड फॉर अस टू बी, आपने एक सेल्फिश का वर्ड यूज किया, फॉर अस टू बी सेल्फिश, हमें उसके लिए पहले अपने आप को इंटरनली डेवलप करना है। हम उस पोजीशन में, एक वैक्यूम में, या अगर हम खुद इतने डिपेंडेंट हैं दूसरों में, हम सेल्फिश हो ही नहीं सकते। हम लोग उस पोजीशन में नहीं आ सकते कि हम अपने आप को असर्ट करना शुरू करें अगर हमने खुद पे पहले मेहनत नहीं की थी। आपको अपना एक एक्सटर्नल मसल फ्लेक्स करने के लिए पहले अपना इंटरनल मसल डेवलप करना पड़ेगा। हम जब तक अपना इंटरनल मसल नहीं डेवलप करेंगे, हम लोग एक्सटर्नली कुछ भी नहीं कर सकते। So whether we want to be part of a block or not, that is another debate. ये बड़े कुछ आप कह लो यूजफुल ब्लॉक्स हैं, यानी कि हम लोग उससे फायदा भी ले सकते हैं, जैसे ब्रिक्स है या आपके, और अब तो क्योंकि हम मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहे हैं, काफी ज्यादा रीजनल एसोसिएशंस बन रही हैं। हम लोग तो एक सार्क हमारी एसोसिएशन थी, वो क्योंकि हमारी इस रीजन में इतनी वॉलिटिलिटी है और इतने ज्यादा डिसएग्रीमेंट्स हैं, हम लोग वो भी इनएक्टिव है सिंस 2016 आई बिलीव। एससीओ में हम लोग अभी 2017 में आए हैं, और ब्रिक्स में हमने अप्लाई कर दिया है, लेकिन इंडिया
जो है वहां पे है, तो वेदर वो हमें अलाउ भी करता है या नहीं करता, वो बात की बात देखी जाएगी. But we have to, like I said, and I'll repeat myself, we have to develop diplomatic options for us. और वो हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने आप को इस पोजीशन में लाएंगे कि हम लोग नेगोशिएटिंग टेबल पे तो हों. फिलहाल तो हम लोग उस टेबल पे हैं ही नहीं. Before I move to the next question, I would like to ask about the nuclear power point that you mentioned. It felt like you were trying to say that developing nuclear powers wasn't initial in the fun for at the time. What do you have to say about that? Pakistan developing nuclear weapons? Yeah. Yeah. No. So we started to develop nuclear weapons obviously in the 70s, as you know, in reaction to India, nuclear testing. उसी के रिएक्शन में हमने वो डेवलप करना शुरू किया, बट जो उसका जो बड़ा क्रूशियल स्टेज है वो हमारी 80s की स्टेज है, जो कि ज़ियाउल हक के अंडर हमने वो वाला आपका पूरा टाइम है जब हमने प्रॉपर्ली उसको एक ऑपरेशनल मोड में, लेट्स पुट इट दैट वे, वहां पे हम लाए पूरा एनरिच करके, और हमने उसको उस पोजीशन में हम लाए कि हम उससे न्यूक्लियर वेपन्स बाकायदा डेवलप कर सकें. वो हमारे ऊपर एक आप कह लो हो सकता था कि एक बड़ी कोई रिस्ट्रिक्शन लग जाती, बिकॉज नेचुरली हमने अगर लेट्स से 74 में अपना प्रोग्राम शुरू किया है, 6 या 7 years लेटर अंडर ज़ियाउल हक हम लोग बड़े उस क्रूशियल स्टेज पे पहुंच गए हुए थे, एंड द वर्ल्ड न्यू अबाउट इट. Obviously the Americans knew about it, other people knew about it, but they also turned a blind eye क्योंकि उनको हमारी उस वक्त जरूरत थी. See, which is why I keep saying ये जो this idea that हमारी पोजीशन ऐसी है कि अगलों को हमारे पास आना पड़ता है, ये वहां से बातें निकलना शुरू हुई है. एंड सो बिकॉज दे नीडेड अस, दे टर्न्ड अ ब्लाइंड आई. आई मीन यही चीज लेट्स से आज जो ईरान के साथ वो कर रहे हैं, वो पोटेंशियली हो सकता था उस वक्त हमारे साथ भी कर रहे होते हैं. बट ये हमें फर्दर इस बात से भी डेमोन्स्ट्रेट होता है, क्योंकि आप देखो द सेकेंड उनको हमारा यूज नहीं था या उनको हमारी जरूरत नहीं थी अफगानिस्तान में, तो उन्होंने हमारे पे सैंक्शंस लगाना शुरू कर दिए. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे डिड. Now, during the 80s, some of you might be aware of this. एक उनकी अमेंडमेंट थी यूएस की कॉल्ड द प्रेसलर अमेंडमेंट. प्रेसलर अमेंडमेंट एक उन्होंने पास की जिसमें रिक्वायरमेंट थी दैट एवरी ईयर द अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड पर्सनली सर्टिफाई दैट पाकिस्तान इज नॉट डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स, एंड उस सर्टिफिकेशन के बाद उनको एड जो है वो क्लियर होती थी पाकिस्तान के लिए. सो 80, 81, 82 ऑनवर्ड्स वो प्रेसलर अमेंडमेंट के थ्रू हमें हर साल क्लियरेंस मिलती रही, तो हमें एड भी मिलती रही, और एड मिलने के साथ साथ हम अपना कोवर्टली न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम भी डेवलप करते रहे. नाउ आई से कोवर्टली, बट आई एम प्रीटी श्योर द सीआईए न्यू अबाउट इट ऑब्वियसली, लेकिन लाइक आपकी पावर पॉलिटिक्स इसी तरह की होती है, तो उनको हमारी जरूरत थी, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा. बट 88 में सोवियत यूनियन वहां से विड्रॉ करता है, एंड उनको अब हमारी जरूरत यूएस को नहीं है. एंड लिटरली द नेक्स्ट ईयर 1989 वो प्रेसलर अमेंडमेंट में उन्होंने रोक लिया, उन्होंने वो क्लियरेंस नहीं दी, वो सर्टिफिकेशन नहीं दी, और हमारे पे सैंक्शंस लग गए. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि हर मुल्क अपने इंटरेस्ट में करता है ये चीजें, और पाकिस्तान ने भी 80s में यही किया कि हम लोग अमेरिकन एड भी लेते रहे ऑन द सर्टिफिकेशन दैट वी वर नॉट डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स, बट वी वर. तो हमारा वो प्रोग्राम भी चलता रहा. some reliable source told me कि by 1989 हमारे पास एक ऑपरेशनल न्यूक्लियर वेपन बन गया हुआ था. ऑब्वियसली वी टेस्टेड इन 98 जब इंडिया के टेस्ट हुए, फिर हमें इन रिएक्शन टू दैट हमने भी टेस्टिंग की अपनी चागी वाली. बट बाय 89 हम लोग इस कैपेबिलिटी पे आ गए हुए थे कि हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर सकते थे. सो वो जो पूरा डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो आपका 80s में हुआ. Okay, thank you so much for your valuable information. Now, moving on to the last question of the night. Looking at the Russian-Ukraine war and the Gaza crisis, it has been evident that the United Nations has been unable to uphold its founding principles of promoting peace. What is your take on this? And in your opinion, what does this portray about the Western dominance over global politics? Yeah, I mean, that's one of the most frequently asked questions, I would say, even in the classroom. एक बड़ी आप कह लो एक तरह से डिस्पोंडेंसी है, या एक थोड़ी होपलेसनेस भी है, और एक लैक ऑफ ट्रस्ट भी है नेचुरली, एंड फॉर गुड रीजन. इंटरनेशनल सिस्टम के साथ, यूनाइटेड नेशंस के साथ, देयर क्लेम टू प्रमोट पीस, इन सब चीज़ों के साथ.
And I just want to make a couple of points over here just to clarify कि ये system actually काम करता कैसे, and what sort of expectations should we have इस पूरे system से, and वो एक आपके कुछ glaring किस्म के उनके shortcomings क्या हैं system की। देखो, एक तो पहली बात ये है, we often conflate the international system, United Nations, with some sort of a government. पहली बात ये है कि the international system is not world government. ये पूरी दुनिया की एक government नहीं है. It is a voluntary system that we all become a part of voluntarily. And because ये एक global sort of government नहीं है, therefore इसमें कोई compulsion भी नहीं है. And that is the biggest आप कह लो weakness आपने कहना है या drawback कहना है international system का, वो यही है that there is no, let's say, global constitution that we all have to adhere to. There are no global punishments जो कि मुल्क को मिलती हैं अगर आप इंटरनेशनल सिस्टम को फॉलो ना करो. यूएन जो है वो पूरी दुनिया का कोई पुलिसमैन नहीं है. वो एक वॉलंटरी प्लेटफॉर्म है जो कि हमने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डेवलप किया है कि वहां पे मुल्क आए, अगर किसी को कोई इशू है वो आपस में बात करें, एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म हो वेयर यू कैन टॉक टू वन अनदर, सो दैट the first option that you have is not war. First option is okay, we have a platform, वहां पे हम जाके बात कर सकते हैं. Having said that, एक जो मिसट्रस्ट है, एक या आप कह लो एक डिस्पोंडेंसी है कि इस सिस्टम ने हमारे लिए इनफ किया नहीं है, दैट इज एब्सोल्युटली देयर, एंड अगेन फॉर गुड रीजन वहां पे है. द प्रॉब्लम रियली इज कि यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूएन, that reflects the global order of 1945. हम लोग 2024 के ग्लोबल ऑर्डर को वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं करते. वो 1945 का ऑर्डर है और वो आपका बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट होता है वो 5 वो जो वीटो पावर्स हैं उनमें. The 5 countries that have the power to veto any resolution, those are the 5 victors of World War II. Now the world has come a long way since World War II. हमें बहुत ज्यादा और सेंटर्स ऑफ पावर हमने तब से लेकर अब तक डेवलप कर ली हैं. बहुत ज्यादा और नए इश्यूज आए हैं. नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है जो कि तब नहीं होता था. दीज आर एरियाज जहां पे ये इंटरनेशनल सिस्टम हैज नॉट कॉट अप. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि हमारी समटाइम्स एक्सपेक्टेशन भी सिस्टम से यही होती है जो हमारी एक स्टेट से होनी चाहिए. उस स्टेट की जो एक्सपेक्टेशन है वो हम लोग यूएन पे लगाना शुरू कर देते हैं, और फिर जब वो चीज पूरी नहीं होती, बिकॉज वो हो सकती नहीं है पूरी, तो फिर हमारे लिए वो एक कॉज ऑफ कंसर्न बन जाता है कि इस सिस्टम ने डिलीवर क्यों नहीं किया. सो एक तो नंबर 1 जो बात है वो ये है. पर दूसरी बात, अगेन द ग्लेयरिंग सॉर्ट ऑफ शॉर्टफॉल जो इसमें आ रहा है, हमारा प्रॉब्लम आ रहा है, वो यही है कि इस सिस्टम में कोई कंपल्शन नहीं है. नाउ इफ अ कंट्री डज नॉट फॉलो सूट, लेट्स से आईसीजे ने इजराइल के खिलाफ कोई अपनी रूलिंग दी है, and Israel just laughs it off. Israel says, you know what, हम तो आपकी jurisdiction को accept ही नहीं करते. Now, as far as the ICJ is concerned, for ICJ to be effective, both the parties have to agree to ICJ की jurisdiction. अगर वो jurisdiction पे accept ही नहीं करते, ICJ के पास कोई अपनी पुलिस तो नहीं है जो वो भेजेगी, ना उनके पास कोई आर्मी है जो वो भेज सकते हैं. The hope really is that if, let's say, an ICJ ruling comes about, that there will be enough countries that will say, okay, here is a ruling that is backed by legitimacy. ये एक legitimate ruling है और it is now incumbent upon us that we have to follow up. It is incumbent upon us क्योंकि ICJ ने ये कह दिया है, अब हम लोग इजराइल के साथ फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री ट्रेड नहीं कर सकते, अब हम उनको वेपन्स नहीं दे सकते, so on and so forth. So I do understand कि इस सिस्टम के साथ एक नेगेटिविटी एसोसिएटेड क्यों है. For the system to remain influential, for the system to remain relevant, हमें radical reforms की जरूरत है. ये system जिस तरह से अभी है, this cannot continue and still command, the respect of the people, still command the respect of countries. ये इस तरह से आगे continue नहीं कर सकता. ये जो वीटो है, हमें सबसे पहले इसके रिफॉर्म को देखने की जरूरत है बहुत ज्यादा. और आप देखो एक और चीज, international system is not a sentient being on its own. International system cannot think sort of, for itself. What is the international system? International system essentially is global powers and their interests. उनके क्या interests हैं वो आपका international system का interest बन जाता है.
एंड सो जब तक वो वाले पावर्स हैं और जिस तरह से वो स्ट्रक्चर्ड है, हम जब तक उसको रेडिकली रिफॉर्म नहीं करेंगे, वो जो उनके इंटरेस्ट हैं, जो उनके नेशनल इंटरेस्ट हैं, वो ही आपका इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल सिस्टम बनता रहेगा। आप अगर वीटो ही सिर्फ देखो, सो फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो रशिया या पहले सोवियत यूनियन जो होता था, उन्होंने वीटो सबसे ज्यादा यूज किया हुआ है, लाइक अगर आप सारे वीटो का टैली करो। बट लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ द यूएस हैज यूज्ड द वीटो 85 टाइम्स इन टोटल, बट आउट ऑफ 85 टाइम्स 47 टाइम्स उन्होंने यूज किया है सिंपली टू प्रोटेक्ट इजराइल। वो एक इशू पे, सिर्फ इजराइल के एक इशू पे उन्होंने 47 टाइम्स अपना वीटो यूज किया है, आउट ऑफ द 85 जो उन्होंने ओवरऑल यूज किए हैं। अलॉट ऑफ द वीटोज केम वियतनाम के लिए, जब यूएस वियतनाम में था। कुछ उनके वीटो सीरिया के लिए हैं, जो रिसेंट वहां पे वॉर चल रही थी। तो इस तरह वो डिवाइडेड है, बट 47 दैट इज एक ओवरवेलमिंग आप उसमें कह लो यूज है सिर्फ इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए। नाउ दैट मीन्स के वो आ तो यूएन के थ्रू रहे हैं, तो वहां पे आपका इंटरनेशनल सिस्टम आगे फंस जाता है। The conflict that we have inside the Security Council becomes the conflict of the international system. वो ही रशिया और चाइना मोस्टली एक तरफ हैं, और वो जो है आपका अगेंस्ट आ जाते हैं यूएस के। सो जस्ट टू सॉर्ट ऑफ रैप दिस अप, एक तो ये है कि हमें ये समझना है कि इंटरनेशनल सिस्टम के बहुत ज्यादा अपने पिटफॉल्स हैं और उसकी लिमिटेशंस हैं। वहां पे कंपल्शन नहीं है, और क्योंकि कंपल्शन नहीं है तो इसलिए इश्यूज काफी ज्यादा इस तरह के आते हैं। दूसरा, हमें रेडिकली वीटो को रिफॉर्म करने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे आके हमारे बहुत ज्यादा मसले फंस रहे हैं। वो आपकी वही पावर स्ट्रगल चल रही है, और इंटरनेशनल सिस्टम पूरे का पूरा उसकी वजह से फंस जाता है आके। एंड वी सीन दैट इन यूक्रेन, वी सी दैट इन इजराइल, बट वी ऑल्सो सीन दैट इन सीरिया, वी सीन दैट इन इराक इन द पास्ट। तो ये उनके जो मसले हैं वो इंटरनेशनल सिस्टम के मसले बन गए हैं। So one very quick note on something that you said about Western dominance. वेस्टर्न डोमिनेंस, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम नहीं ये चीज रिजॉल्व कर पा रहा, तो देयरफॉर आपके मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर बन रहे हैं, वेदर दैट इज चाइना, वेदर दैट इज, अगर आपने ब्रिक्स की एसोसिएशन को देखना है, वेदर आपने इंडिया के रोल को देखना है साउथ एशिया में, आपके रीजनल सेंटर्स ऑफ पावर इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि पीपल फील लाइक कि हमें वहां से फिर कुछ नहीं मिलता। वो फर्दर जो है ना, एक इनको भी ड्राइव मिलती है कि ये फिर अपने मसले रीजनल बेसिस पर रिजॉल्व करें। So Western dominance has taken a beating and it will continue to take a beating अगर ये उस सिस्टम को रिफॉर्म करके तो अपने आप को रेलिवेंट नहीं रखते, क्योंकि पूरी दुनिया में एक एंटी वेस्ट एक सेंटिमेंट है, और वो फर्दर बढ़ता रहेगा जब तक ये सिस्टम इसी तरह से। तो जस्ट अ थिंग दैट आई वांट योर ओपिनियन ऑन, और कि आप इस पे एग्री करते हैं कि नहीं, कि इन माय ओपिनियन जो गाजा कन्फ्लिक्ट था एंड दी रशिया यूक्रेन वॉर, उसने वेस्ट के एक डबल स्टैंडर्ड को भी एक्सपोज करती है, एंड द यूएन इंक्लूड्स टू इन दिस के, इफ यू लुक फ्रॉम द हिस्ट्री टू, यूएन जो था, जब भी कोई वेस्ट को ऐसा एज एन प्रॉब्लम आता था, फॉर एग्जांपल जस्ट जस्ट टेक एन एग्जांपल, जो हमारे पास कोरिया वॉर थी, जिसमें वेस्ट का एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट था, एज इन क्योंकि वो कम्युनिज्म को उस टाइम कंट्रोल करना चाह रहे थे, तो उसमें यूएन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। उसने बहुत सारी मिलिट्रीज को इकट्ठा किया था, और जनरल मैकार्थर के अंदर जो है वो मिलिट्रीज गई थी कोरिया के अंदर। और व्हेन वी लुक फॉरवर्ड टू द रशिया यूक्रेन वाला सिस्टम, तो उसके अंदर भी यूएन हैज प्लेड अ वेरी मेजर रोल, कि वो बिल्कुल वेस्ट के साथ साथ चल रहे हैं, यूएस के साथ साथ जो है वो बार बार ये बात चल रही है कि ये रशिया इसमें बुरा है एंड द कन्फ्लिक्ट इज जस्ट बिकॉज ऑफ रशिया, लेकिन हमें वो लेवल ऑफ यू कैन से एक्टिविटी गाजा कन्फ्लिक्ट में नजर नहीं आती। डू यू एग्री ऑन दिस? Yeah, no, I completely agree on this, absolutely. And it is not just the UN, it is other structures like, let's say, the International Criminal Court as well, ICC. अब आईसीसी आपका एक ऐसा कोर्ट है जो कि इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट करता है फॉर द मोस्ट एग्रीजियस क्राइम्स। सो फॉर एग्जांपल जेनोसाइड है, वॉर क्राइम्स हैं, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। एक रीसेंट एडिशन उन्होंने इसमें किया क्राइम्स ऑफ अग्रेशन। अब आईसीसी ने व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट्स बहुत तेजी से इशू किया, इवन दो रशिया इज नॉट इवन अ सिग्नेटरी ऑफ द आईसीसी, बट आईसीसी इंडिपेंडेंटली ये चीज कर सकता है। उन्होंने उसके खिलाफ अब अरेस्ट वारंट्स आ गए में। नेतन्याहू के खिलाफ एक बिड आईसीसी में गई भी है, और वो पिछले 5 महीने से डिले हो रही है। नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट्स इशू नहीं कर रहा आईसीसी। और आप किसी भी स्केल से अगर दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स को कंपेयर करो,
the Gaza conflict is way worse by every single measure, whether it is deaths of women and children, whether it is targeting hospitals and schools, whether it is targeting UN peacekeeping forces. आप किसी भी मेजर से देखो, वो एक छोटी मतलब कि कम दिनों की जंग है क्योंकि ज्यादा रीसेंट है, लेकिन उसकी जो कैजुअलिटीज हैं दोज आर वे वे वर्स देन यूक्रेन. लेकिन आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ तो अरेस्ट वारंट इशू कर दिया, नेतन्याहू के खिलाफ पिछले 5 महीने से वो चीज अड़ी हुई है. तो इट इज नॉट जस्ट द यूएन, जो आपके रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, हम इंटरनेशनल सिस्टम की अगर बात करें वो यही है. बट व्हाट आई वाज पॉइंटिंग आउट टू हमायल एज वेल कि इंटरनेशनल सिस्टम इन इटसेल्फ एक कोई सेंशिएंट बीइंग नहीं है. वी होप कि वो सिस्टम किक स्टार्ट करेगा और वो इन पावर्स से हट के कुछ डिसाइड कर पाएगा. बट अल्टीमेटली व्हाट इज द यूएन? अगर यूएन ने सिक्योरिटी काउंसिल उसका अगर सेंट्रल इंजन है, तो सिक्योरिटी काउंसिल में कौन है? सिक्योरिटी काउंसिल में आपकी वीटो पावर्स है, जिनमें से एक यूएस है, जिनमें से एक यूके है. अब इनके जो अपने इंटरेस्ट हैं वो ही रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में. सो वो जो वेस्टर्न हिपोक्रेसी है वो तो यहाँ पे आई मीन इस तरह से तो आई डोंट थिंक पहले इस स्केल पे, क्योंकि अब सोशल मीडिया हर चीज को फर्दर फ्यूल करता है, इस स्केल पे जो वो एक्सपोज उन्होंने उसको किया है, देयर इज नो गोइंग बैक. इसके बाद इसको जब तक वो रेडिकली रिफॉर्म नहीं करेंगे और वो आपकी डेवलपिंग स्टेट्स को, आपकी राइवल स्टेट्स को जब तक एक उस तरह का इसमें स्टेक नहीं मिलेगा, जब तक आप इमर्जिंग पावर्स को रिकग्नाइज नहीं करोगे, जब तक आप चाइना और इंडिया को वहां पे रिकग्नाइज नहीं करोगे, ये चीज इसी तरह से रहेगी कि हम फर्दर उस सिस्टम के बाहर डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे. हम लोग उनको इंक्लूड ही नहीं करेंगे बीच में, और अगर वो कुछ कहेंगे भी तो हम कहेंगे यार आप तो मैटर ही नहीं करते. जैसे इसराइल कहता है, कहते हैं आप मैटर ही नहीं करते, हमारे लिए जो चीज मैटर करती है वो कुछ और है. तो आपकी डिसीजन मेकिंग देयरफॉर और जगहों पे होती रहेगी और ये सिस्टम जो है वो रिडंडेंट हो जाएगा unless we don't radically change things over there. Thank you so much for your insights. Hamail Shamal, do you have any further questions for Mr. Raid? No, I don't have any further questions. Thank you so much. I don't have a question, but I'll recommend you a book and Yeah, please hope that you read it. It's by Hussain Haqqani, The Yeah. Magnificent Delusions. Have you read it? No, I've read other books by Mr. Haqqani, but I haven't read this one yet. I believe Read this one. it is in my library. I'm pretty sure, but I haven't chanced upon it yet. And Yeah, thank you for it's thank you for about the recommendation, because I think book recommendations is something which I'm always looking forward to. And I think books as gifts are the best gifts one can receive as well. So अगर मेरे से कभी कोई पूछता भी है तो मैं कहता हूँ यार कोई अगर अच्छी बुक है आपके पास तो मुझे वो बता दो. So I'll take this as a gift from you, and thanks for the recommendation. yeah, it's about Pakistan, the United States, and an epic history of misunderstanding. So you'll Yeah. enjoy the book. Yes, Mr. Haqqani, former ambassador of Pakistan to the US, has great insights into our relationship with the दो मुल्कों के बीच में है, and he's been the A great ambassador and at some very intellectual. crucial junctures in US-Pak relationships, including I don't know if you guys remember at all. Maybe we're too young, but Raymond Davis का पूरा एक एपिसोड था. उसके दौरान भी Hussain Haqqani हमारे ambassador थे. So he's overseen a lot, and he's a very controversial figure in Pakistan. But controversial people have a lot to say, and I think we should listen to them. Absolutely. Yeah, thank you. Thank you for today. Thank you. It was absolutely wonderful meeting all of you and having this discussion. I hope कि आपकी audiences तक कुछ इसमें से useful and productive गया हो, and it gives them something to think about. Ultimately, the hope should be कि आप उनको enough material दो that they're able to make up their own mind. जरूरी नहीं है कि आपने किसी को fully convince करना है किसी बात पे, but give them enough to think about these things. These are very important issues that all of us are facing, whether as Pakistanis, whether as just citizens of the world. हम बड़े perilous एक टाइम में हैं जब आपके कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो बड़ी
potential verge पे हैं of spilling over and becoming, you know, like आपके broader regional conflicts, rather than just a conflict between two parties or two states. And so it's something that should give us a lot of, you know, food for thought. And I really enjoyed having this conversation. And also, good luck to your podcast. Thank you so much. Thank you so So much. I think that wraps up today's episode of Behind the Mic. Thank you so much to our guest, Mr. Raid Masood, for their insights, and especially my co-host Tamail and Shamal for their valuable contributions. Thank you to all of our listeners for tuning in. And last but not the least, a huge thanks to our team that has worked tirelessly behind the scene. And thank you, everyone. We look forward to bringing more engaging discussions on, as such, on global politics, Pakistan's current affairs. Uh, so until next time, this is Shayan Qureshi signing off. Stay informed, stay healthy, and take care. Thank you so much, and Allah Hafiz.